This is Surbhi from Sushma Science Center, Pune, and I welcome you all, students and parents, on behalf of Scholar City Kota and Sushma Science Center, Pune, to Career CAPS, which is a career counseling and awareness program for students. So, as all of you know, most of the students who are attending today, they are of the age group, or you can say from the classes ninth to 12th. And this question of what career to choose, it's not only there for the students of ninth and 10th, even after students have firmed up which stream to take in 11th and 12th, still, even after that, they are confused. Or many questions come in their mind because you all know there has been so much evolution every year. It's not like the traditional streams only which people are looking towards, but many new streams also. So this program has been very successful in So first I'll be briefing you about the institutions. So first about Sushma Science Center Private Limited. It's an institution with the motive of educating students to be future thinkers and innovators. It's a privately held organization which was incorporated in June 2011. Uh, and very proudly, we can say that our alumni are um, have been very successful. They have been a part of reputed institutions of India like IITs, ICERs, NITs, medical colleges, as well as many institutions, medical and engineering institutions abroad as well. They have been very successful in exams like NTSC, KVPY, government Olympiads, competitive exams, and all. And some of the students who are from the very early batches, they have all been started working in MNCs like Microsoft, Citibank, and all. Next, about Scholar City Quota. So, Scholar City Quota, it was founded in 2020, and it's an edu-venture based out of the Coaching City Quota of India. And it has been established by an edupreneur with over 2 decades of exposure and experience in education industry. The organization also has a focus not only on coaching but also on career counseling, mentoring, as well as content, career content and coaching. They also have collaboration and consulting services for academic institutions like schools, coaching institutes, colleges, universities, and other organizations. And the tagline itself conveys the focus area and the ethics of the organization. About the founding directors of both the institutes. So, the founding director of Sushma Science Center Pune is Mrs. Sushma Samarth. She is an alumnus of IIT Bombay and ISB Hyderabad. She's worked at very senior levels in corporate for over 16 years before turning to a full time edupreneur. And she's also a high performance coach, and she has mentored a lot many students who have got selected in NTSC, ICER, IITs, and Olympiads. Apart from being a high performance coach, she's also a good educator, motivator, and thinker. And the aim is to make the new generation future ready. And at the same time, ma'am is also a career guidance specialist. About Mr. Manoj Kumar Sharma, he is the founder and chief mentor at Scholar City Kota. He's an edu professional turned edupreneur. He has done executive MBA from ISB Hyderabad with international immersion programs at Wharton Business School USA, Kellogg's Business School USA, and IE Business School Madrid, Spain. He's also an MBA from RTU Kota, MDPM and IR from Symbiosis Pune, MS Quality Management from BITS Pilani, Rajasthan, MID and MSW from UOK Kota, MA GMC, JMC, and BTech DT. And prior to establishing Scholar City in 2020, he was associated with Resonance EduVentures Kota for 18 years.
And Sir is a very well qualified professional with over 25 plus years of experience of coaching as well as helping students with career. We welcome both the speakers for today. Both the founders of the organization are the speakers for today's session, Sushma Samarth ma'am and Manoj Kumar Sharma sir. So I welcome both of you, sir and ma'am. Thank you. Thank you. About the advantage of Sushma classes in Scholarcity. First of all, the advantage is the small classroom structure, and we provide for both online as well as offline learning. And to tell you more, like this time it's also an advantage of the lockdown that very renowned teachers from Kota, which is said to be the education hub of India, so we have the advantage of the very renowned teachers from Kota also, who can be teaching the students. You can get the advantage of the teachers of Kota sitting here in Pune, or not only Pune to say, but across pan India. This is an advantage of the online thing, that we can get to learn from very good teachers sitting from anywhere in India. There's a strong focus on conceptual understanding, and it's a blend of technology as well as human touch. So even if we talk about the online classes, it's a live interactive session, and the advantage is that the batch size is really small. So it is not only like, oh, it's on not one way teaching, but it's an interactive teaching, that both the parties can participate, and the students do not feel that they are not a part of the offline live class. Then there is a strong focus on futuristic skills. We focus on building connect with students, and there is also AI based testing platform, which is also online. Then what happens is, one like there is this advantage of having small batch size and interactive class, that many students who have joined some other classes, but over there what happens is that um, many very good students, or who are already performing well, so they tend to actually perform well. So for such students, it hardly matters where they are going, because they are anyway going to perform well. But if you say the students who are average or above average, who could have done very well, they actually return to us, because they want to have one to one attention and just not to get lost in the crowd. So that is an advantage. And as I told you, it has been combined with quota advantage, that you're sitting here in Pune, we can get an access to the teachers, the very good teachers from Kota. And we focus both on online as well as offline model. And one more thing I would like to add here, that the regular classes are going on, but the crash courses for 10th and 12th board as well as JEE and NEET, they will be starting soon. So if you want to inquire, you can contact on the numbers uh, which you have of the institute. Just sharing some of the earlier success stories of NSO, IMO, IPM, BABA exams. Then for IIT, JEE, and NEET exams. So we have had really very good ranks in all these exams. This year, many of the exams are yet to happen. So exams are yet to happen. They have been postponed. The results are really awaited. You can just have a look. And these are the results of the previous year board exams. This is the 10th CBSE board exam. And this is class 12th CBSE board result. Okay, so on this note, I would like to invite the speakers for today's session to address the students on the topic Design Your Career. Thanks, Surbi. Thank you, ma'am. Um, shall I make you the Yeah, host? yes, please. Yes.
Yes, ma'am. Sure. A very good morning to all of you, and thanks Surbi for the extensive details. And I will get quickly started because lot of stuff has to be covered. Very important things that we need to cover, and we want to leave some time for question and answers also. So a lot of things go into people's mind, students and parents as well. So I'll get quickly started. First of all, thank you so much for joining on a Sunday morning. People tend to wake up a little late, so we try to keep it around 11 so that it is not too early for some of the students as well, because I know a lot of my students, they get up late, study late and then get up late. आज के सेशन को हम लोग हिंदी और इंग्लिश का मिक्स यूज करेंगे। यदि कोई टर्मिनोलॉजीज आपको समझ में नहीं आ रही हैं तो फील फ्री टू राइट इट इन द चैट बॉक्स एंड वी विल बी हैप्पी टू क्लैरिफाई। हम लोग उसको क्लैरिफाई कर देंगे आपको। व्हेन वी टॉक ऑफ करियर्स, बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, बहुत सारा क्लटर होता है और इतना इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो रहा है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स कि डिसाइड क्या करना है, कौन सा करियर करना है। चूज कर लिया और उसको काम कर रहे हैं और वो बाद में काम नहीं आया, यूज नहीं हुआ, या it's not that great, then what will happen? So we are to give you an idea of how do you go about in deciding your career, and then Manoj will talk about a little bit more details of different careers which are available. उसके बाद जो सेशंस हैं, another 5 sessions that we have organized, उसमें हम एक एक फील्ड के डिटेल में जाएंगे. So I think by end of all the 6 sessions आपको परफेक्ट क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड पर्पस हो जाएगी कि मुझे या मेरे चाइल्ड को क्या करना चाहिए. So now first of all, let's get here. What I am going to cover in this presentation, उसमें पहले कौन से फैक्टर्स हैं, कौन से इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो आप करियर डिसीजन मेकिंग में यूज करते हैं, वो उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे. उसके बाद जो फ्यूचर में हमें लगने वाली स्किल्स या कोर्सेज या जो भी जॉब्स हैं वो किस टाइप के होंगे, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. एंड देन हम जो रेकमेंड करते हैं, जिस स्टाइल से आपको करियर चॉइस मेकिंग में हेल्प करते हैं या स्टेप्स जो होते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे. सबसे पहले आप कोई भी करियर चूज कीजिए, आप उसको लाइक करते हैं या नहीं लाइक करते हैं, आपके लिए इजी है या डिफिकल्ट है, वॉट एवर इट इज, it is a it needs hard work. So especially telling the students कि मम्मी पापा बोलते रहते हैं पढ़ाई करो, हार्ड वर्क करो. So don't think that if you like then it will be a easy job for you. No, it's not like that. You have to put in lot of efforts. And then I will also tell the students, because I know I have dealt with lot many students. बहुत सारे बच्चों से बात करते समय या उनसे ऐसे जनरल चिट चैट करते समय समझ में आता है कि कई बार वो लोग अपनी फैंटेसीज जो होती हैं, जो आप ड्रीम वर्ल्ड में रहते हो उसमें, और आपके रियल करियर जो अप्रोप्रिएट करियर आपके लिए हो सकता है, उसमें आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हो. सो मेनी पीपल से आई वांट टू बिकम एस्ट्रोनॉट, आई वांट टू वॉक ऑन द मून. बहुत सारे लोगों को एक्टर्स ही बनना रहता है, किसी किसी को फिल्म मेकर बनना है, कुछ और करना है, अलग सा करना है. सो एवरीथिंग इज एक्सेप्टेड, आप कुछ भी कर सकते हो, बट पहले आप देखो कि ये चीज आपके लिए सही है कि नहीं. इफ इट इज नॉट exactly matching lot of things that are required for this career, then कोई problem नहीं, आप फिर भी वो कर सकते हो, but it may take lot of efforts from your side. So be ready for that. So this is what I wanted to say first of all. Now आपको करियर चॉइस करते समय किन 4 इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान रखना है. सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होती है स्किल, उसके बाद इंटरेस्ट, पर्सनालिटी एंड मोटिवेशन. आई विल एक्सप्लेन ईच वन ऑफ देम. यदि आपको कुछ डाउट रहता है तो आप चैट बॉक्स में आप लिख सकते हो. सो स्किल इज व्हाट यू रियली, व्हाट यू आर गुड एट,
जो आप इजीली कंफर्टेबली कर लेते हो। जैसे कई बच्चे होते हैं हमारे साथ में ही, अपने क्लास में ही रहेंगे, कोई तो प्रॉब्लम आ गई तो ऑल ऑफ ए सडन दे आर एबल टू थिंक कि इसको प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, अच्छा ये कर लेते हैं, इसको वहां भेज दो। सो दे आर गुड प्रॉब्लम सॉल्वर। सम पीपल आर वेरी गुड एट मैथ, सम पीपल आर बॉर्न लीडर्स। सब लोग उनका सुनते हैं। आप ग्राउंड पे चले जाओ, चार छह बच्चे खेल रहे रहेंगे, उनमें से एक ऑटोमेटिकली लीडर आता है। उसको कुछ लीडिंग सिखाया नहीं, लीडरशिप सिखाई नहीं है, नेचुरली ही हैज अ और शी हैज अ टैलेंट फॉर लीडरशिप। ओके, सो दीज आर दी स्किल पार्ट ऑफ इट। सेकेंड इज इंटरेस्ट। आपको किस चीज में इंटरेस्ट है? कई बार आपको आउटडोर एक्टिविटीज में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। समटाइम्स यू आर वेरी साइंटिफिक इन नेचर, आपको उसमें घुस के उसका एनालिसिस करके वो सब चीजें ज्यादा अच्छी लगती हैं। मेनी टाइम्स यू आर क्रिएटिव इन नेचर, राइट, इंटरेस्ट वाइज। थर्ड पार्ट इज पर्सनैलिटी। सो पर्सनैलिटी इज वॉट यू आर इनहेरेंटली। जैसे कई लोग होते हैं बहुत सारे रिस्क टेकर होते हैं, बिंदास से कोई भी रिस्क ले लेंगे, ज्यादा डरते नहीं है। सम पीपल आर वेरी रिस्क अवर्स, सो वो सोच के करेंगे ये करना है कि नहीं, चार बार सोचेंगे, कई बार रिस्की स्टेप्स वो नहीं करेंगे। सो दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी दे हैव। सम पीपल आर इंट्रोवर्ट, सम पीपल आर आउट एक्सट्रोवर्ट। सो इंट्रोवर्ट मीन्स दे आर जनरली ऑन देयर ओन, बहुत छोटा सा उनका फ्रेंडशिप ग्रुप भी होगा, बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, दैट टाइप ऑफ पीपल। एक्सट्रोवर्ट इज हजार टाइप के फ्रेंड्स होंगे, स्कूल का फ्रेंड अलग, कॉलोनी का फ्रेंड अलग, और कहीं कहीं के फ्रेंड का ग्रुप भी बन जाएगा, मतलब फ्रेंड के फ्रेंड से उनकी ज्यादा फ्रेंडशिप हो जाएगी, राइट। सो दैट इज अ टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। और सबसे इंपॉर्टेंट एक और बात जो है वो है आपको क्या ड्राइव करता है लाइफ में, आप क्या करना चाहते हो। सो देर आर पीपल हु से आई वांट टू अर्न लॉट ऑफ मनी, और मनी से क्या करेंगे, तो अच्छा घर चाहिए, बड़ा घर चाहिए, लेविश रहना है उन्हें, बड़ी कार्स चाहिए, अच्छे अच्छे होटल्स में खाना है। some people will say नहीं वो सब ठीक है, what I want is that people should know me, I should become famous, okay। And some others say वो सब छोड़ो, I want to help people, right। So they कभी भी देखो कि सर भी वो तैयार हो जाएंगे, ओके तेरे को ये हेल्प चाहिए, आई एम रेडी, आई विल कम एंड हेल्प यू। सो ये होते हैं मेनली आपको क्या ड्राइव करता है, आपका लाइफ में मोटिवेशन क्या है। सो चारों चीजें, स्किल्स, इंटरेस्ट, पर्सनालिटी एंड मोटिवेशन, ये चारों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपको किस टाइप का करियर चॉइस करना है, राइट। सो ये सब बातें हुई हमारे अंदर की, हम इनसाइड, इनहेरेंट नेचर ऑफ अस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज आउटसाइड। आप इस सब में अच्छे हो, आपको ये अच्छा लगता है, एवरीथिंग इज ऑल राइट, बट वर्ल्ड शुड ऑल्सो नीड इट। सो जो इकिगाई है, दैट्स a Japanese concept, and it mixes both about you, internal and external world. Okay, so in previous slide we spoke about what you are good at, मतलब आपकी स्किल क्या है, और what is your interest, that means what you love। but ठीक है, फाइन, इंटरेस्ट इज गुड, स्किल इज गुड, बट वर्ल्ड शुड नीड दैट स्किल ऑल्सो, राइट। दुनिया को, विश्व को उस चीज की जरूरत भी तो होनी चाहिए। ओके, एंड जरूरत होना एक बात होगी, उसके बाद दे शुड बी रेडी टू पे फॉर इट, राइट। सो ये चारों चीज मिलके करियर बनता है। यदि आप हॉबी बोलते हो तो इट कैन बी जस्ट व्हाट यू आर गुड एट, व्हाट यू लव, okay, but if you say career, that means if you want to earn money out of it, then world should need it, and also they should be ready to pay for it। for example, एक बात मान लेते हैं कि my voice is very nice, okay, and I can sing really well, so fine, this can become my hobby, singing can become my hobby। but यदि कोई तैयार ही नहीं है सुनने के लिए, उनको चाहिए ही नहीं, उनको टाइम ही नहीं है, और उसके बाद यदि वो पे नहीं करना चाहते, मेरा कॉन्सर्ट है, कोई पे करके आना ही नहीं चाहता, तो कैन इट बिकम माई करियर? नो, इट कैन नॉट बिकम माई करियर, इट कैन रिमेन एज माई हॉबी। इज दैट क्लियर टू ऑल? या, ओके। सो हमें इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों साइड से हमें देख के अपना करियर चॉइस करना है। अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो स्किल से रिलेटेड है वो ऑल्सो है कि हमारा इंटेलिजेंस कौन सा होता है। सो अनफॉर्चुनेटली हमारे स्कूल्स में अभी दो ही टाइप के इंटेलिजेंस ज्यादा टेस्ट किए जाते हैं। वन इज लॉजिकल एंड मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, एंड सेकंड इज लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। सो आपके कोर्सेज, आपके जो 10th 11th 12th में जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, उससे आप क्लियरली रिलेट कर सकते हो। वन इज लॉजिकल एंड मैथमेटिकल, राइट। उसमें क्या होता है, उसको आप बोल सकते हो तर्क, लॉजिक मीन्स तर्क, एंड
मैथमेटिक्स इज गणित, एंड सेकंड इज लिंग्विस्टिक, मतलब लैंग्वेजेस जो आपकी भाषाएं रहती हैं। सो यही दो तीन सब्जेक्ट आपके पास ज्यादा रहते हैं, स्कूल में आपको यही टेस्ट किया जाता है। सो जो अच्छा नहीं है मैथ साइंस में, उसको हम जनरली क्या बोल देते हैं, उतना इंटेलिजेंट नहीं है, राइट? बट दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट। Actually, there are 9 type of intelligences. Other than mathematical and linguistic, there are other 7 intelligences. I will briefly talk about you, so that briefly talk about these intelligences, जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कि कई बच्चे किसी और इंटेलिजेंस में बहुत ज्यादा हाई रहेंगे, एंड उनके लिए उस टाइप का करियर भी बहुत अच्छा चॉइस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस, इन दिस इंटेलिजेंस यू आर मोर रिलेटेड टू नेचर, प्रकृति आपको बहुत अच्छा लगता है उसके साथ काम करना, लुकिंग एट ट्रीज, उनके एनालिसिस करना कि अरे इस ट्री का इतना बड़ा होता है, इसके इसके जो लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं, वो इस टाइप के होते हैं, और समथिंग लाइक दैट। सो यू कैन बी गुड एट दैट। वन गुड एग्जाम्पल इज, इफ यू हैव सीन स्वामी रामदेव बाबा जी के साथ जो बालकृष्ण जी रहते हैं, वो नेचुरलिस्ट है, एक एक रूट देखेंगे, अरे ये रूट ऐसी है, इसमें ये अच्छा होता है, उसमें वो अच्छा होता है। सो वो लोग उस चीज में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज म्यूजिकल इंटेलिजेंस। वी कैन टॉक अबाउट ए आर रहमान। अलग ही स्टाइल है, अलग ही नेचुरल इंटेलिजेंस है म्यूजिक के लिए। ओके, सो देर आर पीपल हु कैन, उन्होंने सीखा नहीं है म्यूजिक, बट वो बता सकते हैं तुम्हारा यहाँ सुर गलत हो गया, राइट? कैसे बता लेते हैं, उनको वो इंटेलिजेंस डेवलप्ड रहता है। ओके, देन एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, इस टाइप के लोग ज्यादातर सेंट्स बन सकते हैं, या फिर वो लोगों को गाइड बन सकते हैं, वो बताते हैं व्हाई वी लिव व्हाई वी डाई, फिलोसफर्स बन सकते हैं, उस टाइप के लोग होते हैं। जो इंटरपर्सनल स्किल्स होती हैं, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, वो लोगों से रिलेट कर सकते हैं, उनके बहुत जल्दी रिलेशनशिप बन जाती है लोगों से, फ्रेंड्स अच्छे बनेंगे, अच्छा इसको इसका चेहरा देख के ओके इसको ये कुछ प्रॉब्लम लग रही है। सो उस टाइप के ये लोग एचआर वगैरह में, ह्यूमन रिसोर्सेज में बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। देन बॉडीली काइनेस्थेटिक्स, these are the people who can use their hands and legs and all very perfectly. Okay, so they could become very good professional dancers, they could become jugglers। आपने जगलिंग देखा होगा जिसमें 8-10 बॉल एक साथ वो डालते हैं, एक भी बॉल गिरती नहीं है, राइट? सो दीज आर द पीपल। एंड आप करने जाओगे, आप बोलोगे मैं भी सीख सकता हूँ, यस यू कैन लर्न इट, बट जिनको इनहेरेंट रहता है उनको वो इजी जाता है, दूसरों को थोड़ा ज्यादा एफर्ट डालना पड़ सकता है। लिंग्विस्टिक वी हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट। देन इंट्रापर्सनल, ये जो होते हैं ये सेल्फ के बारे में डिस्कस करते हैं कि भाई व्हाई आर ह्यूमन बॉर्न, व्हाट डू वी फील। सो इस टाइप के लोग होते हैं ये, जो जो सेल्फ हेल्प टाइप के लोग होते हैं, मोटिवेटर्स होते हैं, वो इस टाइप के लोग बन सकते हैं। देन स्पेशल मींस जिनको 3D विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा है, सो दीज आर द पीपल हु आर रिक्वायर्ड फॉर बिकमिंग आर्किटेक्चर, आर्किटेक्ट्स एंड ऑल दैट। वो चीज नहीं है, बट वो ऐसा डिजाइन सोच सकते हैं, 3 डायमेंशनल पेपर पे बना है, बट वो देख लेंगे इतना डेप्थ रहेगा, इतना ये रहेगा। सो दीज आर दी different type of intelligences which actually in our education, current education system, they are not taken so well taken care of. But looking at the new education policy, more and more such skills are getting incorporated, intelligences are getting incorporated, so now that will be really good। but हम इन टाइप के इंटेलिजेंसेस के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, एंड अकॉर्डिंगली वी कैन टेक चूज योर करियर। So luckily, if it is looking very small for you, don't worry. Those who want, we will share with you. So अभी आप concept और इसमें ध्यान दे दीजिए कि क्या हम लोग बोल रहे हैं और क्या important points हैं। Each and every slide हम लोग आपसे share कर सकते हैं, so don't worry too much on reading the slides, okay? And luckily for this generation, all type of intelligences will have some or the other very good careers associated, so don't worry about it। जैसे देर आर पीपल आई नो, आप सबने, यदि म्यूजिक आपको अच्छा लगता है, आई लव म्यूजिक, सो उसमें जो पंडित भीमसेन जोशी हैं, उनके जो सुपुत्र पंडित श्रीनिवास जोशी, ही इज पास्ड आउट फ्रॉम आईआईटी दिल्ली, बट अब वो गाना गाते हैं और बहुत अच्छा गाना गाते हैं, राइट? सो उनका मैथमेटिकल इंटेलिजेंस भी अच्छा था और म्यूजिकल इंटेलिजेंस भी अच्छा था, और घर में वो सब था ही, तो अच्छा ही उनको ट्रेनिंग भी अच्छा मिल गया। सिमिलरली पीपल इन महाराष्ट्र एंड
in India also might know a great singer Ashwini Bhide Deshpande. She is a veteran singer, but she is a PhD in biochemistry from Bhabha Atomic Research Center. So आप देख सकते हैं कि किस टाइप का इंटेलिजेंस चलता है. Another example is Manjul Bhargava. Those who like mathematics would have heard his name for sure. He is one of the field medal. जैसे नोबेल प्राइज होता है साइंस में, वैसे मैथ्स में फील्ड मेडल होता है. सो ही इज ए फील्ड मेडलिस्ट एंड ही इज अ वेरी गुड तबला प्लेयर. सो ऐसे मिक्स इंटेलिजेंसेस अवेलेबल रहते हैं. इट्स ऑल अबाउट ट्राइंग टू नो व्हाट इज बेस्ट इन अस, राइट? सो अब बात करते हैं फ्यूचर की. सो ये अभी तक ये हो गया कि इंटेलिजेंसेस क्या है, स्किल्स क्या चाहिए, आपको क्या क्या सोचना है, वर्ल्ड को क्या क्या चाहिए, वो सब. नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द एसेंशियल स्किल्स फॉर फ्यूचर. आपको ये सारी चीजें 100% आनी चाहिए. आप कुछ भी बन जाइए, आप म्यूजिशियन बन जाइए, आप डॉक्टर बन जाइए, आप कुछ भी बन जाइए. ओके, सो डोंट थिंक दैट टेक्नोलॉजी एंड ऑल इज ओनली रिलेटेड टू इंजीनियर्स. नो, आप मैथमेटिशियन बनो, आप स्टैटिस्टिशियन बनो, आप सेल्स पर्सन बन जाओ, आप मार्केटिंग में चले जाओ. ये सब चीजें आपको फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी हैं, और एंड आपको उसको डेवलप करना पड़ेगा. व्हाट आर द स्किल्स? critical thinking, digital literacy, working with tech enabled tools and techniques, robotics and automation, technology and computer skills. आप irrespective of your field, आजकल म्यूजिक भी करते हैं तो आपको पता होना चाहिए, इतने दूर यहाँ तक सुनाई आना चाहिए, इस हॉल में, पूरे हॉल में सुनाई आना चाहिए. तो साउंड इंजीनियरिंग कैसा होना चाहिए. यदि आप कुछ मेडिसिन करते हैं, डॉक्टर बन गए हैं, तो आपके काफी सारे टूल्स तो ऑपरेशन और इसके टूल्स सारे टेक्निकल टूल्स रहते हैं. ऐसे आजकल हाथ से ऐसा सब ऑपरेशन कम और कम होते जा रहा है, लेजर से ऑपरेशन हो रहे हैं. सो यदि आपको टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आएगी तो आई डोंट थिंक यू विल बी एबल टू डू गुड जॉब. आप पीछे रह जाएंगे, यू विल बी लेफ्ट आउट. सो दीज आर इंपॉर्टेंट स्किल्स. देन क्रिटिकल थिंकिंग में ये रहता है कि आपको क्या दिख रहा है, क्या क्या चीजें हैं, उनसे क्या क्या आप कंक्लूजन निकाल सकते हो, उसके और डिटेल में उसके आगे का स्टेप क्या होगा. Think about lot of things about it. That is more of critical thinking. So all these things need to be developed. Otherwise, if you I will just want to say one important thing which we have seen, I have read lot about it. So यदि 1000 साल पहले की बात करेंगे तो धीरे धीरे ह्यूमन रेस प्रोग्रेस कर रही थी. 200 साल पहले देखेंगे तो थोड़े फास्ट प्रोग्रेस होने लगी. एवरी 100 years देयर वाज सम न्यू थिंग कमिंग अप, न्यू टेक्नोलॉजी कमिंग अप. सो आपने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में सोचा होगा, तो एवरी 100 year कुछ चेंज होता था. उसके बाद 1900s की बात करेंगे तो एवरी 50 years समथिंग वाज चेंजिंग. फिर 10 years में चेंजेस आने लगे काफी ज्यादा. नाउ द पेस ऑफ चेंज इज सो फास्ट कि एवरी 1 year या एवरी 6 month 100% चेंज हो जाता है. नए नए डिवाइसेस आ जाते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, नई नई सॉफ्टवेयर लैंग्वेजेस आ जाती हैं. तो हमें ये सब सीखना बहुत ज़रूरी है कि पेस बहुत ज़्यादा है. उसके लिए आप जो इम्पोर्टेंट स्किल हैं वो गैदर कर लीजिए. बिकॉज काफ़ी सारे जो बच्चे अभी ज्वाइन किए उनके पेरेंट्स हो सकता है कि आईटी में हो, तो उनसे आप पूछ के बात करके देखिए, तो उनको भी नई नई लैंग्वेजेस सीखनी पड़ती हैं. उनकी टेक्नोलॉजी भी एवरी 6 महीने 1 साल में चेंज हो जाती है. तो आपने सोचा कि मैंने इंजीनियरिंग कर लिया, अब मेरा काम हो गया. दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क, राइट? यू विल हैव टू कंटिन्यूअसली अपडेट योर सेल्फ. अब फ्यूचर में जॉब कौन से रहेंगे? सिंपल बात है, जो आज प्रॉब्लम्स है वो कल के जॉब बनने वाले हैं. सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी है एनवायरनमेंट. हम लोग डैमेज करते जा रहे हैं. सो जो एनवायरनमेंट के लिए रीवाइल्डिंग बता सकता है कि नहीं, अभी ऐसा आपने किया तो इतने प्लांट्स ग्रो कर दो, इतना ऐसा होना चाहिए, पानी को ऐसा गंदा नहीं होना चाहिए. रीवाइल्डरिंग जो कर सकता है वो, उसकी स्किल की जरूरत होगी. गार्बेज, आपको वैसे भी पता होगा, स्पेशली मुंबई पुणे काइंड ऑफ सिटी, इतना गार्बेज जनरेट होता है कि समझता ही नहीं कि उसको प्रोसेस क्या करें, कैसे करें. गार्बेज डिजाइनर विल बी अ वन इम्पोर्टेंट स्किल. एनर्जी, हर चीज में हमें बहुत एनर्जी यूसेज हो रहा है. जो हमारी रीयूजेबल है वो तो ठीक है, बाकी खत्म हो जाएगी. तो सोलर एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी, दिस काइंड ऑफ एनर्जी विल बी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. एक्सटिंक्शन ऑफ एनिमल हो रहा है, बायो कंजर्वेशनिस्ट की बहुत जरूरत पड़ेगी. वी नीड चीपर एंड बेटर सॉल्यूशन. सो यदि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने मम्मी पापा या
ग्रैंड पेरेंट्स से बात पूछेंगे तो उस समय के जो टेलीविजन होते थे वो इतने थिक होते थे, डेप्थ उनकी इतनी होती थी। यदि आप देखेंगे तो वो बिल्कुल थिन फिल्म टीवीज आने लगे हैं। सो मटेरियल साइंस, आपको अच्छे अच्छे मटेरियल होने चाहिए। इट कुड बी plastic related materials, it could be metal, so metal के combinations and different type of materials are required. Then उससे भी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स आ रही है कि बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी आ रही है। सो हो सकता है, इमेजिन अ वर्ल्ड ना, अगले हो सकता है 10 साल में आप ऑफिस जा रहे हो कह के गए ऑफिस में, तो ऑफिस में आपको कौन कौन मिलता है? अभी हम लोग जाते हैं ऑफिस में तो हमको हमारे सारे फ्रेंड्स मिलते हैं। आप जब जाओगे ऑफिस में तो हो सकता है कि आपके पास 5-6 फ्रेंड्स तो हैं, बट ऑल ऑफ देम आर रोबोस। ओके, क्या बात करोगे? बट वो रोबो थोड़े इंटेलिजेंट रहेंगे। ओके, आपको देख के समझ जाएंगे तो आज झगड़ के आया किसी से। ओके, सो वो he will talk maybe properly, but finally they are robots, right? They are not human beings. So हो सकता है कि some kind of complications come up because we are not going to get lot of people to talk to at our workplace or whatever. Okay, so counselors, psychiatrists, these kind of jobs also will be very very important. Now coming to different things like आर्टिस्टिक एरियाज में कौन सा फ्यूचर हो सकता है? तो आर्टिस्टिक एरिया में मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, फैशन डिजाइनिंग, दीज थिंग्स आर देयर। जिनको सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, कई बार R&D करने में बहुत मजा आता है। आपको मिलिट्री में जाते हैं, दे आर वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल इफ यू टॉक टू पीपल फ्रॉम आर्मेड फोर्सेस। देन टॉप अर्निंग में इनोवेटर्स हो सकते हैं, सीईओज हो सकते हैं, एंटरप्रेन्योर्स हो सकते हैं। सोशल फेम के लिए आप पॉलिटिशियन बन जाओ, बहुत फेम फेम मिल जाएगा यदि अच्छा काम करते हैं। डॉक्टर्स एंड ऑल दीज थिंग्स आर देयर, सो यू कैन लुक एट these points also. I will just rush through these slides because very important concepts from Manoj are also awaited. So मैं पूरा नहीं बताऊंगी, बट हम लोग जो आपको थॉट प्रोसेस देना चाहते हैं वो ऐसा है कि अगले फ्यू इयर्स में अकेला कंप्यूटर साइंस बन के भी नहीं चलने वाला है, और अकेला मेडिसिन या ऐसा करके भी नहीं चलने वाला है। बाहर की यूनिवर्सिटीज में अवेलेबल है कि आप कंप्यूटर साइंस विद न्यूरोलॉजी कर लीजिए। ओके, न्यूरोलॉजी मतलब आपने मेडिसिन पढ़ा है, मेडिकल साइंसेस पढ़ा है, और कंप्यूटर मतलब आपने कंप्यूटर में इंजीनियरिंग किया है। सो इस टाइप के कस्प मैचिंग एरियाज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, और ये किसी रोबोट से या कंप्यूटर से कॉपीएबल नहीं होंगे, कॉपी नहीं कर सकता है वो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स स्किल्स। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट, आई विल नॉट रीड, बट इन लेटर सेशंस वी कैन गेट इनटू डीपर ऑफ इट। ओके, सो जैसे फिजिक्स के साथ आप न्यूक्लियर मेडिसिन कर लो, है ना? सो मेडिसिन करने के लिए आपको बॉडी का पूरी फिजियोलॉजी तो समझ में आनी चाहिए, राइट? जैसे आपको 10th वगैरह में सिस्टम सिखाते हैं कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, ये सब तो आपको फिजियोलॉजी आनी चाहिए, उसके साथ फिजिक्स भी आना चाहिए, क्योंकि आप कितना रेडियो एक्टिव मेडिसिन का डोसेज दे रहे हो, ज्यादा दे दिया तो बॉडी सब बर्न हो जाएगी, राइट? सो दीज काइंड ऑफ cusp type of areas is what we recommend that you should do, राइट? केमिस्ट्री के साथ आप लॉ कर लो, फॉरेंसिक साइंस कर लो, बड़े इंटरेस्टिंग फील्ड्स बन जाएंगे, राइट? सो आई विल नॉट गेट इनटू इट। इन फाइनेंस सम कुड बी सीएफओ बनना है, आपको इकोनॉमिस्ट बनना है, आप मैथ और फिजिक्स पीएचडी करके इकोनॉमिस्ट और इस टाइप के एरियाज में आप जा सकते हो, पॉलिसी मेकिंग में जा सकते हो, रिजर्व बैंक गवर्नर बन सकते हो। सो दीज आर सम एरियाज इन फाइनेंस। ह्यूमैनिटीज में राइटिंग, जर्नलिज्म, साइकोलॉजी, corporate communication, lot of areas are there. I'm not going to touch each one of them. These are some fastest growing. Physicians continue to be very fast growing. Statisticians, software development, mathematicians, genetic counselors, and data analysts. These are some very fast growing occupations. हम लोग कैसे सजेस्ट करते हैं वो इम्पोर्टेंट पार्ट है। व्हाट वी आस्क यू टू डू इज टू टेक एप्टीट्यूड टेस्ट। दिस इज नॉट एट ऑल मैंडेटरी। यदि आप एवरेज एंड अबव एवरेज हो तो प्रिटी मच आप सब कुछ कर सकते हो। सो एप्टीट्यूड उसी के लिए जरूरत है जो थोड़ा सा उतना एवरेज से थोड़ा सा नीचे है या काफी नीचे है, उन लोगों के लिए एप्टीट्यूड जरूरी होता है। अदरवाइज आपने एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं भी किया, बिकॉज एप्टीट्यूड टेस्ट में कॉस्ट यू 3000 रुपीज, 2000 रुपीज, बट नॉट नेसेसरी दैट यू डू इट। ओके, उसके बाद जो हम लोगों को लगता है, बिकॉज वी हैव डेल्ट विद सो मेनी स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट यू शुड टेक एटीट्यूड एंड इंक्लिनेशन टेस्ट। एंड आप कैसे करेंगे वो भी आप आगे सुन सकते हैं। देन पेरेंट्स का व्यू लेना है, पेरेंट्स अपना व्यू देंगे चाइल्ड की एबिलिटी में, इंटरेस्ट में एंड ऑल दैट। एंड फिर बच्चों के चाइल्ड्स के इंटरेस्ट एंड ड्रीम डिस्कस करेंगे, उसके बाद स्किल मैप बनाएंगे, और उसके बाद हम
करियर एक्सप्लोरेशन करेंगे और उसके बाद फाइनलाइज करेंगे. सो दिस इज हाउ वी ट्राई टू सजेस्ट यू. नाउ वी हैव सम स्प्रेडशीट, इधर सिर्फ जस्ट एग्जांपल के लिए आपको रख दिया है. सो ये 9 टाइप के इंटेलिजेंसेस यहाँ लिखे हैं. उसमें मदर, फादर, टीचर, यदि कोई आपके अच्छे फ्रेंड्स हैं या कजिन्स हैं जो आपको अच्छे से समझते हैं, और खुद आपका, उनकी रेटिंग ली जाएगी 0 to 10 में, 10 बीइंग द हाईएस्ट. ऐसे हम लोग असेस करते हैं. उसके बाद हम आपका इंटेलिजेंस थोड़ा देखते हैं कि कहाँ सच में आपका लगता है. फिर वही 4 पॉइंट जो हमने लिखे थे कि व्हाट ड्राइव्स यू, व्हाट टाइप ऑफ पर्सनालिटी यू आर, व्हाट यू आर गुड एट, एंड व्हाट आर योर इंटरेस्ट एरियाज. मदर, फादर, स्टूडेंट के व्यू हम लोग लेते हैं. और उसके बाद हम सब्जेक्टिव रखते हैं, इतना ऑब्जेक्टिव नहीं रखते, क्योंकि ह्यूमन जो माइंड है, ब्रेन है, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से वन थिंग फिट्स ऑल कभी नहीं हो सकता. दैट इज अवर लर्निंग. आई हैव पर्सनली एक्सप्लोर्ड लॉट ऑफ करियर असेसमेंट टेस्ट, बट मैंने ये फाइनल व्यू निकाला है कि ऐसा एक एक बार में करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है. सो हम ये करवाते हैं. अब आपको 10 साल बाद तक का सोचना है. आप 12th में हो, उसके 10 से 15 साल बाद तक का सोचना है. ये सब एग्जाम्पल की स्लाइड्स हैं, इस स्लाइड से कुछ होता नहीं है. यदि सोचते हो कि मुझे फाइनेंस में जाना है और मुझे पॉलिसी मेकिंग करना है, लास्ट में से थर्ड मैं बोल रही हूँ, लास्ट पॉइंट का थर्ड पॉइंट, इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग एंड रेगुलेटरी रोल्स, यदि आपको ये करना है तो आपको पीएचडी करनी पड़ेगी, राइट. मास्टर्स करना पड़ेगा या पीएचडी करनी पड़ेगी. तो फिर आप ये स्लाइड बनाओगे कि मैं पीएचडी कहाँ से करूंगा, उसके पीछे लिखोगे मास्टर कहाँ से करूंगा, फिर बैचलर्स कहाँ से करूंगा. इस टाइप का आप पूरा मैपिंग करोगे आगे तक का, तो आप सर्टेनली बहुत अच्छे प्लेस में पोजीशन हो गया. हम लोगों की जनरेशन में यूजुअली कैसे होता था, हम पहले जो पता है उतना कर लेंगे. इंजीनियरिंग पता है, ओके इंजीनियरिंग कर लिया, फिर थोड़ा जॉब कर लिया, फिर पता चला नहीं एमबीए करना चाहिए, फिर एमबीए कर लिया. नहीं तो किसी को लगता है नहीं नहीं मेरे को मास्टर्स करना है, तो हम जाते थे. अभी ऐसा नहीं है, आपको सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, एवरीथिंग इज अवेलेबल. आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं. सो ये दिस इज व्हाट इज कॉल्ड डिजाइनिंग योर करियर. ओके, नहीं तो आप ऐसे 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 जाओ, जिधर अच्छा लगा, नहीं नहीं ये अच्छा नहीं है, यहाँ जाओ. बट you guys are lucky to have that opportunity to know everything in advance so that you can plan your career. So that is all what I wanted to say. We will not stop for a break or a question answer right now. I will transfer it to Manoj to take his views forward, and after that we will certainly have enough time for question and answer. So over to you, Manoj. Hi. Thank you, Sushma. Thank you so much. Yeah. Hello, dear students. मेरे ख्याल से कुछ हो सकता है पेरेंट्स भी हो इसमें, मुझे आइडिया नहीं है इसमें, बट अगर पेरेंट्स भी हैं तो उनको नमस्कार मेरा. मैं मनोज हूँ कोटा से. एंड सुषमा, कैन वी हैव द प्रेजेंटेशन प्लीज? Yes, I'm just sharing yours. हाँ, जैसे मुझे सुषमा ने बताया कि हमें कंटेंट में जो है हिंदी को ज्यादा रखना है, तो हिंदी मैं राजस्थान से हूँ, कोटा से, तो हिंदी तो कोई दिक्कत ही नहीं है. आई कैन स्पीक बोथ द लैंग्वेजेस, इंग्लिश एंड हिंदी, बट मैं कोशिश करूंगा कि हिंदी का कंटेंट इसमें ज्यादा रखूं. और फिर भी अगर किसी को कोई क्वेश्चंस वगैरह है तो जैसा सुषमा ने बताया कि आप अपने क्वेश्चंस जो है रेज कर सकते हैं एंड यू विल बी आंसर्ड, है ना. ये जो प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन बेसिकली आपको कोई बहुत ज्यादा कुछ नोट नहीं करना है, लिखना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं करना है. यू जस्ट सी इट एंड लिसन टू व्हाट आई से. ये प्रेजेंटेशन वगैरह तो बाद में भी आप देख सकते हैं, आपको अवेलेबल भी करवाया जा सकता है. हमारे लिए प्रेजेंटेशन का यूज होता है अपनी टॉक्स का या बात का एक फ्लो बना के रखना, और कोई इंफॉर्मेशन मिस ना हो जाए जो हम आपको बताना चाहते हैं. ये बेसिक पर्पज है इस प्रेजेंटेशन के साथ में रखने का. सुषमा ने ऑलरेडी बहुत सारी बातें बताती है कैरियर को डिजाइन कैसे करना है. मैं थोड़ा सा फोकस करूंगा, क्योंकि ये सेशन जो है हमारे 5-6 सेशन चलेंगे, ये पहला सेशन है. हम लोग थोड़ा सा ब्रीफली चीजों को टच कर रहे हैं, बेसिक चीजों को, कि कैरियर के लिए क्या क्या डिसीजंस इंपॉर्टेंट होते हैं, उसका एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं. उसके बाद जो भी सक्सीडिंग सेशंस होंगे हमारे, उनमें अलग अलग कैरियर्स के बारे में और डिटेल जानकारी देंगे. तो स्टूडेंट जो भी इंटरेस्टेड होगी, आज जो बताया उसके बाद उनको लगता है किसी पर्टिकुलर एरिया में वो ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो उससे रिलेटेड जो सेमिनार है आने वाले या वेबिनार है उनको वो अटेंड कर सकते हैं. किसी को लगता है नहीं मैं तो पहले सारी जानकारी लूंगा, सो यू कैन अटेंड ऑल द सेशंस आल्सो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. क्योंकि ज्यादा लंबे लंबे सेशंस भी नहीं, 1-1.5 घंटे के सेशंस हैं, so you get this much of time which will be worth for you, because career is a very important decision, and this is the time when most of the students take their decisions, mostly at class 10th level और ज्यादा से ज्यादा 12th के बाद जो है.
So can we have the next slide, please? Next, Sushma. Yeah. So ये जो presentation है मैं बहुत ज़्यादा मेरे बारे में बात नहीं करूँगा क्योंकि we are already slightly running behind the schedule. So we can have the next slide, please. ये ऑलरेडी बता चुके हैं, मैं जो है इनके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा. आगे चलें प्लीज, और आगे चलें. हाँ, बस यहाँ से मैं स्टार्ट करना चाहूंगा. बिफोर आई स्टार्ट द एक्चुअल पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन, जस्ट आई विल टेक 1 or 2 minutes. मैं कोटा में रहता हूँ. कोटा जैसा आप सब लोग जानते हैं, कोटा इज हब फॉर टेस्ट प्रिपरेशन, स्पेशली इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन के लिए. इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन यानी जो IIT JEE मेन और IIT JEE जिसे आजकल JEE एडवांस बोलते हैं, और JEE मेन, JEE एडवांस जो है IITs में एडमिशन के लिए होता है, JEE मेन जो है आपके NIT जो दूसरे इंस्टीट्यूट्स के लिए होता है, और नीट जो मेडिकल के लिए होता है. इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, NTSC है, ओलंपियाड्स है, KPY है. तो कोटा जिसमें 1.5 से 2 लाख बच्चे हर साल पढ़ने के लिए आते हैं. अभी कोरोना की वजह से सब लोग ऑनलाइन ही स्टडीज कर रहे हैं अपनी, बट वी आर होपफुल दैट अगले सेशन से चीजें नॉर्मल होगी और सब लोग फिर से ऑफलाइन कोचिंग में आएंगे, और परहैप्स इट विल बी अ ब्लेंडेड लर्निंग इन फ्यूचर, जहाँ पे ऑफलाइन के साथ साथ में एक अच्छा टेक्नोलॉजी का भी साथ में आपको देखने को मिलेगा. सो मैं पिछले 18 साल से कोटा में रह रहा हूँ. मैं रेजोनेंस के साथ एसोसिएटेड रहा हूँ 2002 से लेके 2020 तक, इस साल मार्च तक. और खूब सारा काम जो है बच्चों के साथ इंटरेक्शन का, पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन का, काउंसलिंग, गाइडेंस, मोटिवेशन. बाहर के कई स्कूल्स में जाके मैंने इस तरह के कैरियर काउंसलिंग के सेमिनार्स लिए हैं, और किस तरीके से हम लोग स्टूडेंट्स और बच्चों को जो है उनके फ्यूचर के लिए डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकते हैं. इसमें काफी सारा काम किया है. मैंने ये अपना खुद का जो है स्टार्टअप शुरू किया है स्कॉलर सिटी कोटा में अभी कुछ समय पहले ही, और मेरे इस तरह के जो है कुछ सेमिनार्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, एंड पुणे के लोगों से मुझे जुड़ने का मौका मिला सुषमा साइंस सेंटर के जरिए. सो आई एम थैंकफुल टू सुषमा साइंस सेंटर एंड सुषमा फॉर दैट, and it's an honor for me to interact with the students in the cities of Pune and around and across the Maharashtra. So नॉर्मली जो भी बच्चे, हम लोग 10वीं क्लास तक जब पढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा हमें कैरियर के बारे में सोचना ही नहीं होती, क्योंकि सभी को एक 10th तक तो एक ही जैसे सीक्वेंस में पढ़ना होता है. पहली क्लास, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 10वीं क्लास तक सब लोग पढ़ते रहते हैं. बच्चे भी उनको भी बहुत ज्यादा कैरियर को लेके उतना दिमाग में नहीं रहता, और पेरेंट्स भी सोचते हैं कि अभी पहले स्कूलिंग हो जाने दो. पर क्योंकि 10th के बाद एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता है आपको अपने कैरियर का, कि यार अब हमें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए. पेरेंट्स भी सोचते हैं कि अब बच्चे को किस लाइन में डालें. जैसा कि सुषमा ने बताया कि बहुत सारी चीजें जिनको लेके आपको डिसीजन लेना चाहिए. तो 10th के बाद जो है नॉर्मली हमारे पास अभी जो 10+2 सिस्टम चल रहा है उसमें मोटे मोटे 3 ऑप्शन सामने आते हैं. नॉर्मली बच्चों के सामने स्कूल भी ऑफर करते हैं वैसे, कि या तो आप साइंस लीजिए, या कॉमर्स लीजिए, और या आर्ट्स लीजिए. साइंस में भी जो है नॉर्मली 2 तरह के कॉम्बिनेशन ऑफर होते हैं. पहला हो जाता है मैथ्स का स्ट्रीम, जो PCM जिसको बोलते हैं हम, इसमें आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के ऑप्शंस होते हैं. एक दूसरा साइंस में स्ट्रीम होता है जो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का दोनों का स्ट्रीम होता है. कुछ बच्चे कई बार मैथ्स और बायोलॉजी को एज अ अल्टरनेटिव या एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं. बट आज के टाइम में जो ऑलरेडी एग्जाम जो है इतने कॉम्पिटिटिव हो गए हैं, मोस्टली जो है स्टूडेंट्स या तो मैथ्स की तरफ जाते हैं या बायोलॉजी की तरफ डिसीजन लेते हैं. ज्यादातर बच्चे अगर आप देखें कि बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, ज्यादातर बच्चे उनमें से मैक्सिमम जो है PCM कॉम्बिनेशन को लेते हैं, और काफी बच्चे फिर उसमें जो है PCB कॉम्बिनेशन लेते हैं. इसके अलावा कुछ और बच्चे होते हैं जो कॉमर्स स्ट्रीम की तरफ जाते हैं. कॉमर्स यानी जिनका इंटरेस्ट जो है ना अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स या बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटीज में होता है, तो वो उसकी तरफ जाते हैं. और इसके अलावा काफी बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि नहीं, साइंस मुझे इंटरेस्ट नहीं करता, या मैं उतना नहीं पढ़ाई कर सकता, या कॉमर्स में मुझे मजा नहीं आता. तो उनके लिए जो क्रिएटिव और जो आर्ट्स वाला फील्ड रहता है वो काफी ओपन और वाइड फील्ड रहता है. तो इसमें बच्चे जो है आर्ट्स में, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, लैंग्वेजेस और बहुत सारे ऑप्शंस इसके अंदर रहते हैं जो बच्चे ऑप्ट करते हैं. तो 10th के बाद क्लास 11 में सबसे पहले तो आपको डिसीजन लेना है कि हमें साइंस में जाना चाहिए, कॉमर्स में जाना चाहिए, आर्ट्स में जाना चाहिए. अब ये डिसीजन सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे 11th-12th पढ़नी है इसलिए डिसीजन लेना है, बल्कि 11th-12th के बाद ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और आगे की पढ़ाई, या मेरा आगे का करियर कैसे चले, उसको सोच के अपने को डिसीजन लेना चाहिए कि हमें 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट ले. सो वी कैन मूव टू नेक्स्ट स्लाइड. Yes. Now
अब जो हमने पहली बात की साइंस का जो स्ट्रीम लिया, अगर आपने जो बच्चे साइंस 11th-12th के लेवल पे पीसीएम लेते हैं, उन बच्चों को कहीं ना कहीं अपने जो भी आगे का कैरियर देखते हैं, तो अगर जो इंजीनियरिंग में कैरियर अपना देखना है, क्या मुझे अंडर ग्रेड जो मेरा है, ग्रेजुएशन जो है इंजीनियरिंग में करना है, यानी बी टेक करना है मुझे, या बी प्लानिंग, बी आर्क, बी डिजाइन, ये सारे जो कोर्सेज करने हैं मुझे, तो उसके लिए उसको कहीं ना कहीं कुछ एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ेंगे 12th के बाद, और 12th के साथ जो है, जिसमें मेन जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जो आईटीज के लिए इंडिया के जो टॉप इंस्टीट्यूट है, आईटीज है या आईएसटी है, आईएसआरस है, उनके लिए जो है आपको जेई एडवांस देना पड़ेगा। और जेई एडवांस से पहले आपको जेई मेन जो स्क्रीनिंग होता है जेई एडवांस के लिए, और जेई मेन का जो स्कोर भी यूज होता है एनआईटी जो हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी है, या ट्रिपल आईटीज है, इसके अलावा और भी गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, इसके अलावा कुछ स्टेट्स भी अपने इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जेई मेन के थ्रू ही एडमिशंस देते हैं। तो जेई मेन एक तरह से अम्ब्रेला एग्जाम है, जो बच्चे इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं इंडिया में, या इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो एक बड़ा एरिया तो जो है इंजीनियरिंग का। उसके बाद कुछ बच्चों को लगता है 11th-12th पढ़ने के बाद, या दे ट्राइड फॉर गुड इंजीनियरिंग कॉलेज, लेकिन उनका किसी अच्छे कॉलेज में नहीं हुआ, तो उनको लगता है कि क्या अल्टरनेटिव ऑप्शन मेरे लिए और हो सकता है। या बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं कि नहीं, मुझे इंजीनियरिंग साइड नहीं जाना, मुझे पीसीएम लेना है, बट आई वांट टू मेक माय करियर इन प्योर एंड अप्लाइड साइंसेस, तो बीएससी करना चाहते हैं या बीएससी ऑनर्स करना चाहते हैं। अगेन उसमें भी वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आपको 3 साल के लिए पढ़ना होता है। इंजीनियरिंग के कोर्सेज टिपिकली 4 साल के होते हैं। अगर कोई इंटीग्रेटेड प्रोग्राम हो जिसमें आपको डुअल डिग्री या 5 ईयर का प्रोग्राम होता है, जिसमें आपको अंडरग्रेड और मास्टर्स दोनों साथ में मिलती है। बट नॉर्मली जो ग्रेजुएशन के कोर्सेज होते हैं बीएससी लेवल के, वो सारे इंडिया में जो है 3 साल के कोर्सेज होते हैं, 3 इयर्स के लिए होते हैं वो। इसके अलावा और भी बहुत सारे बच्चे जो साइंस लेते हैं, उनको लगता है कि नहीं यार, मैं अब साइंस की लाइन छोड़ रहा हूँ 2 साल बाद, उसको मजा नहीं आ रहा, तो दे कैन चेंज देयर लाइन, दे कैन डू बीबीए, बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। कुछ बच्चे आगे जाके फिर बीएससी के बाद बीएड भी ऐड कर लेते हैं। इसके अलावा इवन इंजीनियरिंग में बहुत सारे डिप्लोमा प्रोग्राम चलते हैं, जो बच्चे डिग्री नहीं करना चाहते, जिनको लगता है कि हमें बहुत जल्दी से जॉब करना है, तो एक छोटा सा डिप्लोमा प्रोग्राम करके दे कैन डू जो भी अपने स्किल वाले जॉब होते हैं वो ले सकते हैं। तो साइंस पीसीएम वालों के लिए मोटा मोटा आगे 12th करने के बाद भी 3-4 ऑप्शंस खुलते हैं। इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, प्योर एंड अप्लाइड साइंस में जा सकते हैं, और इसके अलावा बहुत सारे ओपन जो एरियाज है, बीबीए वगैरह है, उसमें वो लोग जा सकते हैं। नेक्स्ट। ओके, अब साइंस में एक तो हमने बात किया पीसीएम कॉम्बिनेशन का, एक दूसरा जो बच्चे साइंस के में पीसीबी कॉम्बिनेशन लेते हैं, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का ऑप्शन लेते हैं। तो जो बच्चे 11th-12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ा टारगेट, जो बच्चे प्राइमरली इसलिए पीसीबी लेते हैं कि उन्हें मेडिकल में जाना है या मेडिकल लाइन में जाना है, और पूरे इंडिया में मेडिकल लाइन में जाने के लिए एक ही कॉमन एग्जाम आजकल गवर्नमेंट करवाती है, दैट इज कॉल्ड नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जो 12th के बच्चे सभी बच्चों को देना पड़ता है। और इसके थ्रू पूरे इंडिया के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनमें नॉर्मली जो पॉपुलर स्ट्रीम है, जिसे हम एलोपैथी बोलते हैं, एमबीबीएस के कोर्सेज चलते हैं। मास्टर्स इन बैचलर इन जिस एमबीबीएस है, इसके अलावा जो है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी का कोर्स होता है, इसको हम एमबीबीएस बोलते हैं। इसके अलावा बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, और इसके अलावा आयुर्वेदिक, यूनानी पैथी, होम्योपैथी, इन सब के कोर्सेज जिनको हम आयुष में कैटेगरी में डालते हैं, बीएमएस, बीएचएमएस, ये सारे बीयूएमएस। इसके अलावा वेटरनरी साइंसेज जो 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 अपने एनिमल्स से डील करते हैं, बीवीएससी का कोर्स होता है। ये सारे कोर्सेज में बच्चे 12th के बाद जो है एडमिशंस ले सकते हैं अपनी ग्रेजुएशन करने के लिए। तो जो बच्चे, इसके अलावा जिपमेर जो है पौंडीचेरी का एक इंडिया का टॉप कॉलेज है, जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जिपमेर, ये अपना एक अलग एंट्रेंस टेस्ट करवाता। बाकी इंडिया में एम्स वगैरह सारे कॉलेज के लिए अब नीट हो गया। पहले एम्स के लिए अलग होता था, मेडिकल कॉलेज के लिए सीपीएमटी या पीएमटी होता था, बट अब सारे एग्जाम जो है इंडिया में, आपको मेडिकल में किसी में भी जाना है कॉलेज में, नीट में अपियर होना आपको बहुत जरूरी हो गया। बस एक जिपमेर एक ऐसा इंस्टीट्यूट बचा है जो अपना अलग से एंट्रेंस टेस्ट करवाता है। अदरवाइज नीट कवर्स ऑल द मेडिकल कॉलेज। मेडिकल के अंदर भी सारी स्ट्रीम्स, एमबीबीएस हो, बीडीएस हो, आयुष हो, सब वो कवर करता है। लेकिन अब जो बच्चे, जिन बच्चों को लगता है कि नहीं मुझे तो डॉक्टर में नहीं हो पाता उनका, या किसी कारणवश उनको जो अपनी पसंद का कॉलेज है वो नहीं मिलता है, तो दे कैन ऑप्ट फॉर अदर ऑप्शंस आल्सो। कई बार ऐसा लगता है कि मतलब 12th में अगर बायोलॉजी ले लिया 11th-12th में, तो उसके बाद मेडिकल में नहीं हुआ तो क्या ऑप्शंस है? स्टिल देयर आर मेनी ऑप्शंस यू हैव। सो यू कैन ऑप्ट फॉर फार्मेसी, जिसको बी फार्मेसी बोलते हैं अपन, या फिजियोथेरेपी जो बीपीटी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी है,
या नर्सिंग में अपना करियर बना सकते हैं, या फिजियोथेरेपी मतलब बेसिकली जो हॉस्पिटल्स में मरीजों को जो है ना उनको फिजिकल एक्सरसाइज करवाते हैं, किसी का कोई, तो ये डॉक्टर्स के साथ में जो है अलाइड एरियाज है जो मेडिकल साइंसेज के साथ में जुड़े हुए हैं। नर्सिंग है जो पेशेंट्स की केयर करते हैं, और डायग्नोसिस जो अपनी लैब टेस्ट वगैरह होती है, ब्लड टेस्ट होना, ये टेस्ट होना, वो टेस्ट होना, तो इस तरह के जो मेडिकल से जुड़े हुए कैरियर है उनमें वो बच्चे कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे नॉर्मली जो बीएससी के कोर्सेज अवेलेबल है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के ऑप्शन के साथ, वो तो कर ही सकते हैं, उसमें आगे जाके बीएड वगैरह कर सकते हैं, डिप्लोमास कर सकते हैं। और इसके अलावा जो ओपन कैरियर्स है, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो सभी के लिए ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, दे आर इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी स्ट्रीम। So these are the options which are available for students at physics, chemistry, biology combination. अब साइंस वाला स्ट्रीम हो गया, हमने मैथ्स और बायो दोनों कवर कर लिया। अब जो बच्चे नेक्स्ट प्लीज, जो बच्चे कॉमर्स लेते हैं वो सोचते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तो कॉमर्स वाले बच्चों के लिए एक तो टिपिकल ग्रेजुएशन वाला फील्ड होता है 12th के बाद। अगर 11th-12th में आपने कॉमर्स लिया है तो जो ग्रेजुएशन करते हैं अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट शास्त्र में। लेकिन एक जो पॉपुलर कैरियर ज्यादातर कॉमर्स वाले बच्चे करते हैं वो होता है सीए, सीएस और सीएमए का, जो यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी या कोस्ट अकाउंटेंट वगैरह की जो कोर्सेज होते हैं, इनके लिए बच्चे प्रिपरेशन करते हैं। 11th-12th के लेवल से शुरू हो जाते हैं, और ये वाले कोर्सेज जो है बेसिकली किसी कॉलेज वगैरह में एज ए रेगुलर प्रोग्राम के रूप में नहीं पढ़ाए जाते हैं। दे हैव देयर इंडिपेंडेंट एजेंसी जो ऑटोनोमस है, और वो इनके इन कोर्सेज को सीए, सीएस, सीएमएस को, सीएमए को करवाती है। तो स्टूडेंट बीकॉम के साथ साथ भी कोर्सेज कर सकते हैं, और इंडिपेंडेंटली जब ये कोर्सेज पूरे होते हैं तो दे गेट अ सर्टिफिकेट फॉर सीए, सीएस और सीएमए, एंड दे कैन स्टार्ट देयर ऑन प्रैक्टिस, दे कैन वर्क इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, और अपना खुद का भी काम वो शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा लॉ एक ऐसा पॉपुलर प्रोग्राम है। लॉ नॉर्मली जो है 3 इयर्स का प्रोग्राम होता है ग्रेजुएशन के बाद, ट्रेडिशनली तो ऐसा होता है, जिसको हम एलएलबी बोलते हैं, बैचलर ऑफ लॉज। वो नॉर्मली ग्रेजुएशन के बाद होता है, लेकिन आजकल एक नया ट्रेंड शुरू हो गया इंटीग्रेटेड लॉज का, इंटीग्रेटेड एलएलबी का, दैट बिकम्स अ 5 ईयर कोर्स। उसके लिए जो है इंडिया में जो है लॉ, बड़े बड़े लॉ स्कूल्स उनके अंदर प्रोग्राम चलता है। तो 12th में कोई भी बच्चा, चाहे आर्ट्स से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, उनका एक एंट्रेंस एग्जाम होता है क्लैट, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। वो देके आप इंडिया के जैसे एनएलआईसी बेंगलोर है, ऐसे हैदराबाद में नलसार है, बहुत सारे अच्छे अच्छे लॉ कॉलेज है, उनमें आप जा सकते हैं 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए 12th के बाद ही। और 12th आपने जरूर नहीं कि साइंस में क्या हो, कॉमर्स में क्या हो, आर्ट्स में, किसी में भी कर सकते हैं आप, लेकिन आपको क्लैट के थ्रू आप इन, और ये 5 साल के कोर्स होते हैं जिसमें आपको अंडर ग्रेजुएट और जो लॉ की जो डिग्री आपको एलएलबी वो मिलेगी। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे बीकॉम, बीए, बीएससी करने के बाद भी 3 ईयर का प्रोग्राम करते हैं, तो वो करने पे आपको 3 + 3 6 साल लगाने पड़ेंगे, लेकिन क्लैट के थ्रू जाएंगे तो आपका 5 साल में ये कोर्स हो जाएगा। इसके अलावा जो मैंने बताया कि और भी बहुत सारे जो कोर्सेज है ओपन बच्चों के लिए अवेलेबल रहते हैं। नेक्स्ट, अभी जो लास्ट का एक लोड बचता है, अगर हम देखें इंडिया में तो ज्यादातर बच्चे 10th के बाद जो बहुत अच्छे टॉप वाले बच्चे होते हैं वो ज्यादातर बच्चे साइंस लेते हैं, और जो बीच का क्राउड होता है उसमें कुछ बच्चे जो है कॉमर्स लेते हैं, कुछ आर्ट्स लेते हैं, और काफी बड़ा क्राउड जो बच्चे अपना, जिनका 10th का रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है, या किसी कारणवश साइंस या कुछ ऐसी जगहों पर रहते हैं जहाँ पे साइंस अवेलेबल नहीं रहती या कॉमर्स नहीं है, वो बच्चे आर्ट्स में ले लेते हैं। और बहुत सारे बच्चे जिनके लिए आगे पढ़ने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियली बहुत अफोर्ड नहीं कर पाते, दे ऑप्ट फॉर बीए। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे हैबिट से भी, अपनी रुचि से भी, या आगे अपना कैरियर कैसा बनाना चाहते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बीए में लेते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स। तो इसमें बहुत सारे पास और ऑनर्स कोर्स होते हैं। सब्जेक्ट्स मैंने ऑलरेडी बताया, आप जो है पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, लिटरेचर, इससे बहुत सारे कोर्सेज लेते हैं। इसके अलावा लैंग्वेजेस पे फोकस कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपको लैंग्वेज का टीचर बनना है, लैंग्वेज में काम करना है, हिंदी, इंग्लिश, इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजनल लैंग्वेजेस हैं, इस तरह के कोर्सेज आप ऑप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ओपन कोर्सेज रहते हैं जैसे जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। आप चाहते हैं कि मैं टीवी और इस तरह की इंडस्ट्री में जाना चाहता हूँ या न्यूज में जाना चाहता हूँ, तो आप जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के पत्रकार बनना चाहते हैं, तो बीजेएमसी इज अ वेरी पॉपुलर कोर्स फॉर देम। इसके अलावा जो है एलएलबी, बीएचएम, होटल मैनेजमेंट और इस तरह के बहुत सारे, बीसीए, कंप्यूटर एप्लीकेशन, आपको लगता है कि मुझे कंप्यूटर एप्लीकेशन वगैरह की, तो वो ये सब ओपन है सभी बच्चों के लिए, बिना किसी स्ट्रीम के। आप जो है, आपको लगता है कि मुझे एक कोर्स करना है तो आप कोई भी स्ट्रीम ले सकते हैं। तो दीज आर stream independent courses. So next we can have the next slide. अब आपने 11th-12th में क्या सब्जेक्ट पढ़ा, आपने अंडरग्रेड पे क्या पढ़ा, ये सारे मैं आगे कैसे बता रहा हूँ पीजी के लिए भी, क्योंकि आपके दिमाग में अगर हो कि मैं किसी
मैं अभी साइंस लेता हूँ, आर्ट्स लेता हूँ, कॉमर्स लेता हूँ, तो मैं कहाँ मेरा अंडरग्रेड करूंगा, कैसे करूंगा और फिर कैसे पीजी कर सकता हूँ। अभी मैं सिर्फ कोर्सेज की बात कर रहा हूँ। इसके बाद जब हम अलग सेशंस लेंगे तो फिर हम डिटेल में कॉलेजेस की बात करेंगे, डिग्री प्रोग्राम्स की बात करेंगे, उनमें कैसे एडमिशंस होता है, कब आपको तैयारी करनी है, उस तैयारी में आपको क्या क्या हेल्प चाहिए, कब स्टार्ट करना है। ऐसे बहुत सारे जो सवाल है बाकी की सेशंस में आपको मिलेंगे, क्योंकि अभी एक सेशन में ये सब चीजें कवर करना बहुत मुश्किल है। और क्योंकि सबसे पहले तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि कैरियर्स कैसे कैसे होते हैं, उसके बाद हम उनमें जो है अपने इंटरेस्ट और अपनी आगे की प्लानिंग को लेके फिर हम धीरे धीरे उसमें सेलेक्ट करना शुरू कर सकते हैं। तो पीजी लेवल पर अगर हमने अभी आपने पीसीएम में 11th-12th किया, अब आप अंडरग्रेड में आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं। अब आप पीजी करते हैं तो पीजी में आप कहाँ कहाँ सकते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग स्ट्रीम से आ रहे हैं, आपने अंडरग्रेड आपका बी बीटेक किया, तो आप इंजीनियरिंग में एमटेक एमई कोर्सेज कर सकते हैं। है उसके लिए इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ही एमटेक और एमई कोर्सेज चलते हैं, इंडिया के बाहर भी। इसके अलावा प्योर एंड अप्लाइड साइंस में एमएससी के कोर्सेज चलते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के अलावा भी आप और भी बहुत सारे अप्लाइड साइंसेज के कोर्सेज हैं, अर्थ साइंस है, मटेरियल फिजिक्स वगैरह, ऐसे बहुत सारे जो है आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में। आप धीरे धीरे जो है आपका कैरियर का फोकस थोड़ा सा नैरो होने लगता है। आप पहले 10th तक बहुत जनरल पढ़ते हैं, 11th-12th में 3 मोटा मोटा स्ट्रीम हुआ, फिर आपका अंडरग्रेड में आपका एक पर्टिकुलर फोकस कैरियर की तरफ बढ़ता है, पीजी में फिर उसी कैरियर में और स्पेशलाइजेशन होता है, और हम जब पीएचडी की बात करेंगे तो और बहुत सुपर स्पेशलाइजेशन हो जाएगा। सो अब आपका जो कैरियर का जो है पढ़ाई करने का, वो आपका एरिया बहुत नैरो होता जा रहा है। मतलब नैरो का मतलब सुपर स्पेशलाइजेशन है ना, फ्रॉम जनरल टू स्पेशलाइजेशन टू सुपर स्पेशलाइजेशन और हाइपर सुपर स्पेशलाइजेशन हम जिसको बोल सकते हैं। इसके अलावा आप मैनेजमेंट इज अ वेरी कॉमन फील्ड आजकल के जो है, जो मैनेजमेंट साइड में एचआर, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, दे आर वेरियस फील्ड्स है ना मैनेजमेंट के अंदर। उसमें जो है बच्चे किसी भी स्ट्रीम से आ सकते हैं, वो चाहे साइंस से, कॉमर्स से, आर्ट्स से। हम जानते हैं इंडिया में आईएम्स वगैरह टॉप कॉलेज होते हैं, उनमें एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, कैट जिसको बोलते हैं, उसमें सभी बच्चे बैठते हैं, चाहे उसने बीकॉम किया हो, बी आर्ट्स किया हो, बीए किया हो, या उसने इंजीनियरिंग किया हो। बट ज्यादातर उसमें जो सफल सक्सेसफुल स्टूडेंट होते हैं वो इंजीनियरिंग साइड से आते हैं, मेजोरिटी। सो मैनेजमेंट इज अनदर एरिया वेयर यू कैन डू लॉ, जिसको मैंने बताया ऑलरेडी, पहले बात किया। लॉ के एलएलबी के बाद आप एलएलएम ऑप्ट कर सकते हैं, अनदर जो है ना 1 और 2 ईयर के प्रोग्राम्स होते हैं उसके अंदर। इसके अलावा जो बहुत ग्रेजुएशन के बाद जो काफी बच्चे कैरियर चॉइस के रूप में लेते हैं, जिनको लगता है कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, जिसको हम आईएएस आईपीएस वगैरह बोलते हैं, उस फील्ड में जा सकते हैं। ये सबके लिए जनरल होता है। आपको जो उसमें ऑप्शनल पेपर्स लेते हैं, जो कभी बाद में बताएंगे, कि उसके हिसाब से आप अपना जो है ऑप्शनल पेपर्स उसमें ले सकते हैं। डिफेंस सर्विसेज, आपको आर्म फोर्सेज में जाना है, एयरफोर्स, नेवल, इन सब में भी आप जा सकते हैं। और इन सब में एंट्री अलग अलग तरीके से अलग अलग लेवल पर होती है। नेक्स्ट सुषमा। उसके बाद जैसे मैंने बताया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अगर आपने ऑप्शन लिया है, उसमें आपने ग्रेजुएशन किया है, चाहे मेडिकल, अगर आपने नीट के जरिए आपने एमबीबीएस किया है, या मेडिकल के और भी फील्ड जो है आयुर्वेदिक वगैरह किया है, तो आप उसी मेडिसिन के फील्ड में आप पीजी भी कर सकते हैं, एमएस, मास्टर ऑफ सर्जरी, और डॉक्टर ऑफ मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी, और एमबीएससी वगैरह के जो कोर्सेज हैं वो आप इसमें कर सकते हैं। अगर आपने एडलाइड वाले कोर्सेज किए, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी वगैरह, मेडिकल लैपटॉप, तो इनमें आपको मास्टर्स प्रोग्राम भी मिलेंगे आपको और आगे पढ़ने के लिए, जिनमें और स्पेशलाइजेशन होता है। मैनेजमेंट में जैसे मैंने बताया, एमबीए ओपन है, लॉ ओपन है सभी के लिए, और सिविल सर्विसेज वगैरह सभी के लिए ओपन होता है। नेक्स्ट, कॉमर्स अगर पीजी लेवल पर हम बात करें तो एमकॉम, जैसे अगर ट्रेडिशनली आप बीकॉम करके एमकॉम कर सकते हैं। मैनेजमेंट का ओपन फील्ड आपका एमबीए रहता है, लॉ सबके लिए ओपन है। इसके अलावा बहुत सारे बिजनेस से रिलेटेड स्पेशलाइज्ड कोर्सेज आप कर सकते हैं। तो जो सीए, सीएस या सीएमए करते हैं, उनके लिए दे आर द हाईएस्ट डिग्रीज इन दैट सेगमेंट, और वो लोग फिर उसके बाद तो अपना एक्सपीरियंस उनका काम आता है फील्ड में। पर अगर आप एमकॉम करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, और मैनेजमेंट के फील्ड में भी आप, इवन सीए करने के बाद भी लोग मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं, या सीएस करने के बाद भी मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं। कुछ लोग लॉ भी करते हैं आगे फर्दर, बिकॉज जैसे जैसे आपकी एप्लीकेशंस बढ़ती है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आप कैरियर में आगे बढ़ते हैं, आपको और एरियाज की जरूरत पड़ती है जहां पे यू नीड मोर स्पेशलाइजेशन। नेक्स्ट, आर्ट्स में ट्रेडिशनली मैंने बताया, आप जिसमें बीए किया सब्जेक्ट में आगे एमए कर सकते हैं, उसके अंदर अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, एमए इन हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, जो भी आप सब्जेक्ट का आपको इंटरेस्ट है, हिस्ट्री है, साइकोलॉजी है, इन सब में।
MJMC इज ए वेरी पॉपुलर कोर्स इन आर्ट्स, और वैसे तो ये सभी के लिए ओपन रहता है जनरली। अगर आपने BGMC किया तो आप MJMC मास्टर्स कर सकते हैं आपके कैरियर में आगे बढ़ने के लिए, प्रमोशंस के लिए, और किसी स्पेशलाइजेशन के लिए। आप MBA और लॉ और सिविल सर्विसेज तो सभी के लिए ओपन रहते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे गवर्नमेंट सर्विसेज होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल पे, तो किसी भी ग्रेजुएशन का स्टूडेंट उन एग्जाम्स में अपीयर हो सकता है। उसमें स्ट्रीम का इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पेपर्स कॉमन होते हैं, जैसे आपको नॉर्मल मैथ्स का होता है, रीजनिंग होता है, इंग्लिश होता है, जनरल नॉलेज होता है। तो ये बेसिक चीजें जो आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको तैयार करनी पड़ती है इस तरह के एग्जाम्स में, गवर्नमेंट एग्जाम्स में खासतौर पे अपीयर होने के लिए। नेक्स्ट, are now moving to the highest level of, in India, yeah, generally accepted PhD level, Doctor of Philosophy. मीन्स अगर आपने PhD कर लिया मीन्स आप उस फील्ड के सुपर एक्सपर्ट हो गए एक तरीके से, ऐसा बोला जाता है। डॉक्टर आपके साथ लग जाता है। डॉक्टर हमेशा ऐसा ही नहीं होता कि आपने MBBS किया तो डॉक्टर लगता है। आप अगर अपने आगे डॉक्टर लगाना चाहते हो आप PhD भी कर सकते हैं। एंड नॉर्मली जो एरिया में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, आपने जैसे इंजीनियरिंग में किया है, आपने B.Tech किया सिविल इंजीनियरिंग में, उसके बाद आपने M.Tech किया, आपने सिविल इंजीनियरिंग का एक हिस्सा है ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग में, या आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग में किया आपने, तो आप उसी के अंदर फिर कोई और सुपर स्पेशलाइज्ड एरिया बना के आप उसी में PhD कर सकते हैं। और नॉर्मली जो लोग PhD करते हैं उनका जो ऑब्जेक्टिव होता है या वो होता है कि या तो उन्हें टीचिंग में जाना होता है, कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में पढ़ाना होता है कहीं पे, या उनको किसी रिसर्च एरिया में काम होता है। बहुत सारी कंपनी ऐसी है जो उस फील्ड में प्रोडक्ट डेवलपमेंट या रिसर्च का काम करती है, टेक्नोलॉजी में रिसर्च का काम करती है, तो वो लोग उसमें जा सकते हैं। तो PhD उन्हीं के लिए एडवाइजेबल है जो टीचिंग और रिसर्च में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। तो ये दिस इज कंसिडर्ड एज द हाईएस्ट लेवल ऑफ, हालांकि इसके अलावा डीलिट वगैरह भी होता है बट दे आर नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट एज ऑफ नाउ। सो अंडरग्रेड, पोस्ट ग्रेजुएट और PhD तीनों मैंने बात की, लेकिन उससे पहले आप ये सब डायरेक्शन में जाने से पहले आपको जरूरी है कि आप 10th के बाद क्या ऑप्ट करते हो, 11th 12th में कौन सी स्ट्रीम, क्योंकि एक बार आप किसी स्ट्रीम में चले गए तो आपके लिए दूसरी स्ट्रीम में स्विच होना मुश्किल है। आप साइंस लेके 11th 12th में आप आर्ट्स में जा सकते हैं, लेकिन आप आर्ट्स लेके 11th 12th में फिर साइंस में इंडिया में अभी जाना मुश्किल। अभी इंडिया में ऐसे कोर्सेज नहीं होते कि आपने कहा कि 11th 12th मैंने आर्ट्स में कर लिया, मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ, तो वो आप नहीं कर सकते। आपको वापस से हो सकता है 11th 12th पढ़ना पड़े तब तक, लेकिन बहुत सारी अपॉर्चुनिटी एज वाइज, अटेम्प्ट वाइज निकल चुकी होती है। तो इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट टू डिसाइड आप क्या करना चाहते हैं, न सिर्फ अंडर ग्रेड पे बल्कि आगे भी कैरियर में PG और PhD लेवल पे। इसलिए आपको जरूरी है 10th के बाद आप कौन सा स्ट्रीम चूज करते हैं, वेदर यू गो फॉर साइंस, उसमें भी PCM, PCB, या आप कॉमर्स लेते हैं या आर्ट्स लेते हैं। नेक्स्ट, अभी मैं बहुत सारे जो पॉपुलर कैरियर स्ट्रीम्स हमारे सामने इंडिया में अवेलेबल रहती है या चल रही है उनके बारे में जस्ट लिस्ट कर रहा हूं, मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं, और इनके बारे में जो डिटेल्स है आगे वाले सेशंस में हम 4-5 सेशंस में बात करेंगे। अलग अलग सेशन के लिए कुछ कुछ एरिया जो ग्रुप बना के हम लोग उनके बारे में और डिटेल बात करेंगे। डिटेल का मतलब कि उनमें कौन से कॉलेजेस हैं, कौन सी डिग्री मिलती है, कितना टाइम लगता है, कब उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है, कौन कौन सा एंट्रेंस एग्जाम होता है, कब उसके लिए प्रिपरेशन करें, कब स्टार्ट करें, कब एप्लीकेशंस डाली जाती हैं, उनमें आगे करियर कैसे चलता है, इनिशियली जॉब्स कैसे होते हैं, कौन कौन सी कंपनियां उसमें जॉब्स जो है ऑफर करती है या किन किन। इसके अलावा हम बाहर कैसे पढ़ने जा सकते हैं उन फील्ड्स के अंदर, बाहर की कंट्रीज में स्टडीज अगर आपको बाहर करनी है तो ये सारी जानकारी फिर आपको आगे वाले सेशंस में दी जाएगी। तो अगर हम देखें तो जो पॉपुलर कोर्सेज हमारे सामने रहते हैं, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी काफी पॉपुलर रहता है, और इंजीनियरिंग के अंदर भी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, 20, 25, 30 ब्रांचेज हैं, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, केमिकल, एंड देयर आर सो मेनी, देन वी हैव मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज, जैसा मैंने अभी बात किया, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, यूनानीपैथी, ये सारी जो है चीजें मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज में आती हैं। LID में मैंने बात किया था। लॉ एंड लीगल सर्विसेज मैंने ऑलरेडी बात किया है, LLB वगैरह है, कंपनी सेक्रेटरी है, ये सारी चीज जो है लॉ एंड लीगल सर्विसेज में आती हैं। कानून की बातें करते हैं लोग कि हम हमारा जो वी आर पार्ट ऑफ अ डेमोक्रेसी एंड हियर एवरीथिंग इज गवर्न्ड थ्रू लॉ। सो समवन हु इज एन एक्सपर्ट ऑफ लॉ एंड लीगल सर्विसेज, और जिसका इसमें इंटरेस्ट हो, उसको लगता है कि नहीं मुझे लॉ एक्साइट करता है, वो इसमें कैरियर अपना बना सकता है। देन मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी इज अनदर पॉपुलर एरिया। वहां पर लोग BBA, MBA या ग्रेजुएशन के बाद भी आप सीधे MBA कर सकते हैं अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से, IIM वगैरह से, ISB वगैरह से बाहर जाके पढ़ सकते हैं आप। वार्टन है, स्टैनफोर्ड है,
ये सारे जो कॉलेज हैं, इनमें पढ़ने के बाद आप MBA के रूप में जॉब भी कर सकते हैं, अपनी खुद की कंसल्टेंसी भी काम कर सकते हैं। बहुत सारी बड़ी कंसल्टेंसी कंपनी है, कंसल्टेंटी कंपनी है, उनमें आप काम कर सकते हैं। E&Y है आपका, PwC है, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनमें आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत पॉपुलर कैटेगरी होती है जिन लोगों को गवर्नमेंट सर्विसेज का इंटरेस्ट है, कि बहुत सारे घरों में ऐसा तरह नहीं है हमें तो गवर्नमेंट सर्विस ही चाहिए। हाईएस्ट लेवल की गवर्नमेंट सर्विस है इंडिया में, जिनको हम IAS IPS वगैरह बोलते हैं। दीज आर कॉल्ड इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या इंडियन सिविल सर्विसेज, और स्टेट के लेवल पे भी अवेलेबल रहती है। इसके अलावा सेंट्रल के लेवल पे भी अवेलेबल होती है। तो हर स्टेट भी अपने लेवल पे सिविल सर्विसेज वगैरह रखता है, जिनमें आप स्टेट के लेवल पे आपको कैरियर रहता है, और जो अगर आप नेशनल लेवल पे काम करना है तो आपको जो सेंट्रल की सिविल सर्विसेज ICS IAS वगैरह, उनके लिए आपको तैयारी, और इसमें ग्रेजुएशन के बाद आप जा सकते हैं। टीचिंग एंड एकेडमिक्स, आपको पढ़ने पढ़ाने का शौक है, यू कैन मेक योर कैरियर इन टीचिंग एंड एकेडमिक्स। इसके अलावा आपको रिसर्च और साइंस का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, या आप उसमें कैरियर बनाना चाहते हो, यू कैन मेक कैरियर रिसर्च एंड साइंटिस्ट। आपको देश की सेवा करने की इच्छा है, आपको लगता है कि जिनको लगता है कि थोड़ा एडवेंचर चाहिए लाइफ में, आर्म्ड फोर्सेज, डिफेंस, मिलिट्री सर्विसेज वगैरह में जा सकते हैं। जो लोग बैंकिंग और इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनको लगता है कि हमें ये इंडस्ट्री एक्साइट करती है, सर्विस इंडस्ट्री, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, वहां जा सकते हैं। टैक्सेशन, जैसे मैंने बताया, टैक्स जैसे इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स, बहुत सारे टैक्स होते हैं, अकाउंटिंग सर्विसेज होती है, तो CA वगैरह के लोग हैं इस फील्ड में जा सकते हैं। फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट, जो लोग पैसे को बढ़ाना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और उनको लगता है कि मुझे इसमें लोगों का पैसा कैसे मल्टीप्लाई करें, वेल्थ कैसे मैनेज करें, तो फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट में जा सकते हैं। रेलवेज, एविएशन, ट्रांसपोर्ट है, जिनको लगता है कि ये रेलवेज वैसे तो गवर्नमेंट की ज्यादा है इसमें कंट्रोल, धीरे धीरे अभी प्राइवेटाइजेशन भी हो रहा है। एविएशन में काफी प्राइवेट अपॉर्चुनिटीज है। अभी जो आने वाला टाइम आ रहा है ट्रांसपोर्टेशन में, हम सुन रहे हैं कि मुंबई से पुणे अभी हाइपर लूप बन रहा है, तो हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन, कम समय में आप ज्यादा डिस्टेंस कैसे, तो ये वाला एक कैरियर होता है जहाँ पे मास लेवल पे लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। जर्नलिज्म, मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, जिन लोगों को न्यूज़पेपर, टेलीविजन या आजकल जो भी ऑनलाइन मीडिया, FM वगैरह है, ये सब एक्साइट करते हैं, उनको लगता है, तो वो इस तरह कैरियर जा सकते हैं जर्नलिज्म, मीडिया, मास कम्युनिकेशन में। जिन लोगों के अंदर क्रिएटिव लोग हैं, फाइन आर्ट्स, पेंटिंग, ड्राइंग, ये इस तरह कोई भी और क्राफ्ट उनको आता है, जिन लोगों को फिल्म, टेलीविजन इंडस्ट्री में जाना था, दे कैन गो फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट। पुलिस एंड सिक्योरिटी सर्विसेज में जा सकते हैं लोग। नेक्स्ट, हॉस्पिटलिटी, जिन लोगों को लगता है कि उनको एक अच्छी लोगों की सेवा करने में, जिनके अंदर थोड़ा सा, बट दे शुड बी पेड वेल आल्सो, तो ऐसे हॉस्पिटलिटी की जो सर्विस इंडस्ट्री है उसमें जा सकते हैं। होटल्स है, केटरिंग सर्विसेज जो होती है आजकल। ट्रैवल एंड टूरिज्म, जिन लोगों को घूमने फिरने का शौक है या इसमें कोई अपना कैरियर बनाना चाहता है, ट्रैवल एंड टूरिज्म में, खुद भी घूमने का शौक है, लोगों को घुमाने का शौक भी है, तो ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री इज गुड फॉर देम। इसके अलावा जो जिनके अंदर लगता है कोई मुझे स्पोर्ट्स में अपना कैरियर बनता है, आजकल इंडिया में स्पोर्ट्स भी एक काफी बड़ा कैरियर होता जा रहा है, और वी कैन हियर द नेम्स ऑफ लाइक लॉट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, विश्वनाथ आनंद, और बहुत सारे, भाईचुंग भूटिया, बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने स्पोर्ट्स, साइना नेहवाल, और तो स्पोर्ट्स में भी इतना नहीं, हर फील्ड कॉम्पिटिटिव होता है, बट आप अगर चाहे तो उसमें कैरियर बनाना चाहते हो तो आज की तारीख में स्पोर्ट्स, पहले वो जमाना गया जब लोगों को लगता है कि खेलने कूदने में कैरियर नहीं बनता, पर आज के जमाने में अगर आप एक्चुअली सर नॉट हियरिंग योर वॉइस प्रॉपर्ली। ओके, मेरी वॉइस नहीं आ रही वहां पे? I can hear it properly. Yeah, even I can hear it properly. Maybe Okay. you can check your bandwidth at your end, please. ओके, सो स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर के बाद आर्ट्स एंड लिटरेचर, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि मैं तो राइटर बनना चाहता हूँ, नॉवल लिखना चाहता हूँ, कोई बुक लिखना चाहता हूँ, किसी मूवीज में स्क्रिप्ट लिखना चाहता हूँ, मैं तो पोएट बनना चाहता हूँ। तो आर्ट्स एंड लिटरेचर इज अनदर एरिया वेयर यू कैन एक्सप्लोर लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, कैरियर। लेकिन हमेशा एक चीज का ध्यान रखें, जैसा सुषमा मैम ने बताया कि आपकी हॉबी होना अलग बात है, आपको पोएट्री लिखने का शौक है, लेकिन इफ इट कैन नॉट अर्न फॉर यू, मतलब लोग उसकी आपको किताब बना के आपने मार्केट में डाल दी लेकिन लोग खरीद नहीं रहे उसको, तो आप उससे लाइवलीहुड अर्न नहीं कर सकते, अपने उससे पैसा नहीं बना सकते हैं। सो दैट रिमेन्स अ हॉबी ओनली। आप जब तक हॉबी को या इंटरेस्ट को आप अगर उसको लोग उसके लिए पे कर सकते हैं, पूरी दुनिया में उसकी रिक्वायरमेंट है, देन ओनली यू कैन मेक ए कैरियर आउट ऑफ इट। सो ये हमें से ध्यान रखना चाहिए कि हम
ये ऐसा अपनी हॉबी की वजह से कोई डिसीजन ले ले कि नहीं मुझे तो ये पसंद आता है, या नॉर्मली पेरेंट्स भी बताते हैं कि हमारा बच्चा तो ये करता रहता है जी दिन भर, है ना, तो इसी में क्या, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि आउटसाइड वर्ल्ड में आने वाले टाइम में किन चीजों की रिक्वायरमेंट रहेगी, हम उसमें अपना करियर के बारे में ज्यादा सोचें। हॉबी तो हमेशा चलती रहेगी जिंदगी में, साथ में अपने लेवल पे जितना आप चाहें उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। देन बेसिक एंड अप्लाइड साइंसेज, जिन लोगों को रिसर्च में वगैरह में ज्यादा जैसे बीएससी वगैरह करो तो बेसिक एंड अप्लाइड साइंसेज में जा सकते हैं। आईटी एंड आईटीएस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज, जिन लोगों को जैसे मैंने बताया बीसीए वगैरह कोर्सेज है, इनमें बहुत सारे आईटी से रिलेटेड कोर्सेज चल रहे हैं, नेटवर्किंग है, ये सारे जो कोर्सेज हैं आपको आईटी और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज हैं। आईटी इज अ फ्लोरिशिंग कैरियर ऑलरेडी, काफी टाइम से पिछले 20-25 सालों से बहुत इसमें डेवलपमेंट चल रहे हैं। देन पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, आज के टाइम में जो है, अब वो जमाने गए जब पॉलिटिक्स में जो है लोगों को बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई की जरूरत रहती है, लेकिन आजकल पॉलिटिक्स में भी बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग आने, हमारी डेमोक्रेसी मैच्योर हो रही है एंड वी नीड मोर एंड मोर एजुकेटेड पीपल। आजकल हम देखते हैं पॉलिटिकल पार्टी जो है स्ट्रेटेजिस्ट रखती है अपनी जो इलेक्शंस के लिए, और उसमें बहुत सारे लोग जिनको अच्छे एनालिटिक्स हो, जिनको ग्राउंड लेवल की समझ हो, जिनको इंडिया की जो है जो डेमोक्रेसी उसके बारे में समझ हो, वो लोग अच्छे पॉलिटिक्स में या गवर्नेंस में जो है अपना रोल प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा एक जो एरिया है एग्रीकल्चर और एग्रीटेक जिसको हम बोलते हैं, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी और अलाइड साइंसेज लाइक फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, सेरिकल्चर, पिसिकल्चर, ऐसे बहुत सारे एरियाज जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, उनमें आप करियर बना सकते हैं। होम साइंस, फूड, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, आने वाले टाइम में ये भी धीरे धीरे काफी और पॉपुलर हो रहा है। पीपल आर बिकमिंग मोर एंड मोर कंसर्न फॉर देयर हेल्थ, क्या खाना है, कैसा खाना है, जैसे कहते हैं ना ऑर्गेनिक फूड और इस तरह की जो फूड्स है उन सब के लिए। So this is another area where you can think of making your career. Automobile engineering, ये हालांकि वैसे इंजीनियरिंग में कवर होना चाहिए था, लेकिन मैंने इसको अलग से स्पेशली ये रखा है कि आप जो है आजकल के टाइम में जो है जैसे हाई स्पीड ट्रेन हैं, इन सब में जो है करियर काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। बहुत सारी कंपनी ऐसी आ रही है अब इनके अंदर की मास ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक जगह से कैसे ट्रांसपोर्ट कर सके, तो उसमें करियर ड्राइवरलेस कार्स जिसके बारे में ना कि इलेक्ट्रिक कार्स आ रही है आजकल, टेस्ला कंपनी जिसका सब लोग नाम सुन रहे हैं, वो बहुत ज्यादा जो है इलेक्ट्रिक कार्स में काम कर रही है। अभी आने वाले टाइम में विल सी इन नेक्स्ट 5 years इंडिया का जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो काफी चेंज हो जाएगा। वी विल हैव मोर ऑटोमेटिक ड्रिवन कार्स या इलेक्ट्रिक कार्स। मैरीन एंड ओशियन साइंसेज, जिनको पानी बहुत पसंद है, जिनको लगता है कि पानी और पानी में रहने वाली चीजें ज्यादा पसंद है, और वो उसमें बहुत सारे कोर्सेज होते हैं इंजीनियरिंग के भी, साइंस टेक्नोलॉजी और बहुत सारे कोर्सेज होते हैं ओशियन साइंसेज को लेके, वो आप इसमें कर सकते हैं। जिन लोगों को सेलिंग का शौक है, बड़े बड़े शिप्स है, कार्गो शिप्स है, पैसेंजर शिप्स है, आजकल ट्रैवल टूरिज्म में भी शिप्स का काफी यूज होता है, सो दे कैन मेक कैरियर इन मैरीन एंड ओशियन साइंसेज। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग वगैरह ऐसा होती है, इसमें भी कैरियर बनता है बच्चों का। एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग, डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये बहुत तेजी से कैरियर आजकल जो है उभर के आ रहा है कि आप कैसे, आजकल हर आदमी सोशल मीडिया पे है, डिजिटल मीडियम यूज कर रहा है, तो एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांडिंग को कैसे इनके साथ ब्लेंड करके सोशल मीडिया के साथ में, टेक्नोलॉजी के साथ में किसी कंपनी का ब्रांड को एनहांस कर सकते हैं, कस्टमर के साथ एंगेज कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपके ब्रांड को पहुंचा सकते हैं। सो दिस इज अनदर एरिया। इसके अलावा बहुत सारे डिजाइन में कैरियर होता है, फुटवेयर डिजाइन, ज्वेलरी, इंटीरियर वगैरह है। ये एक एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस है। जिन लोगों को, जो लोग एनिमल लवर्स हैं, उनको लगता है कि हमें जानवरों के साथ रहना, उनकी सेवा करना, उनका हेल्प करना ज्यादा पसंद है, तो दे कैन मेक कैरियर आउट ऑफ इट। सो दीज आर this is not an exhaustive list, there could be more areas है ना which are, but I have tried to include and summarize most popular 30 categories. Next, ये कुछ एरियाज है जो इमर्जिंग हो रहे हैं कैरियर में आजकल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसा सुषमा ने भी शुरू में बताया कि हमारा जो प्रोडक्ट होंगे वो एआई सपोर्टेड होंगे, जिनको हम बहुत ज्यादा एनालिटिक्स में, लर्निंग में यूज करेंगे, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए और उसमें जो है कोई कमियां है तो उनको इम्प्रूव करने के लिए। इसी से जुड़ता हुआ एक एरिया और जो डेवलप हो रहा है आजकल, डाटा साइंसेस का, बिग डाटा या डाटा एनालिटिक्स, ये सब नाम है, अल्टरनेटिवली यूज होते हैं। तो बेसिकली वी जनरेट लॉट ऑफ डाटा एवरी डे, मेटा डाटा, नॉर्मल डाटा है, तो उन सब डाटा का यूज करके कैसे अच्छे से डिसीजंस लिए जाएं, डिसीजंस बेटर हो, ज्यादा इफेक्टिव हो, तो ये एक साइंस जो है डेवलप हो रही है। और आजकल इंजीनियरिंग के साथ साथ जो है इनमें सुपर कंप्यूटर साइंस के अंदर और सुपर स्पेशलाइजेशन है, अंडर ग्रेड के लेवल पर भी आ गया है। पहले थोड़ा पीजी और हाई लेवल पे होता था, पर अब धीरे धीरे
आपको बीटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिल जाएगा, बीटेक मशीन लर्निंग मिल जाएगा, बीटेक डाटा साइंसेस मिल जाएगा आपको। एथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी, इट इज अनदर मेजर एरिया विच इज इमर्जिंग, कि कैसे जो है कोई भी सिस्टम है, क्योंकि हम सब लोग टेक्नोलॉजी से जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, और आपका सारा जो नेटवर्क है वो सिक्योर भी होना चाहिए। कई बार हम सुनते हैं कि गवर्नमेंट की साइट हैक हो गई या किसी का अकाउंट हैक हो गया, तो दिस साइबर सिक्योरिटी इज अनदर एरिया विच इज डेवलपिंग। तो बहुत सारे लोग एथिकल हैकर्स होते हैं, वो हैक करके बताते हैं कि आपकी साइट में कमी है, गलत, अगर रॉन्ग इंटेंशन के लिए यू हैकिंग कर रहे हैं तो दैट हैज डिफरेंट थिंग, वो फिर पनिशेबल है लॉ के अंदर, वो गलत चीज है। बट आप किसी को बता के, बहुत सारी कंपनीज अपने खुद के हैकर्स रखते हैं कि आप हमारी साइट में क्रैक करके बताएं या ढूंढ के बताएं कि कोई कमी तो नहीं है, कि लोग उस पर अटैक ना कर सके। इसके अलावा रोबोटिक्स, जैसा सुषमा ने बताया कि रोबोट्स वगैरह का कैरियर काफी तेजी से एक्सपैंड हो रहा है। स्पोर्ट्स मेडिसिन, आजकल स्पोर्ट्स बहुत पॉपुलर चीज हो गई, लेकिन स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं ना कि न्यूट्रिशन, ऐसा फूड की जरूरत होती है, मेडिसिन की जरूरत होती है, खिलाड़ी काफी इंजरी हो जाती है, उनको जल्दी से वो ठीक होकर मैदान में फिर से चलने लगे। So sports medicine is another area where you need specialized, career. Forensic sciences हम लोगों को, जहाँ अपन देखते हैं कि लॉ में या कोई भी अपराध होता है या कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो कैसे हम जो है फोरेंसिक साइंस का यूज करके किसी भी अपराध का केस को सॉल्व कर सकते हैं, तो ये फोरेंसिक साइंसेज है। या डीएनए वगैरह देख के, बहुत सारे पुराने जो है फॉसिल्स मिलते हैं, उनको देख के तो ह्यूमन रेस का डेवलपमेंट है, और बहुत सारी चीजें जो जिनमें हम लोग फोरेंसिक साइंस का यूज कर सकते हैं, एप्लीकेशन करती है। तो जिनको ये चीज एक्साइट करती है, वो इसमें अपना करियर बना सकते हैं। फाइनेंशियल कंसल्टेंट, वेल्थ मैनेजर के रूप में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी, अनदर एरिया। आजकल धीरे धीरे सारे मकान है उनसे स्मार्टफोन्स हो रहे थे, स्मार्टफोन ऑपरेटेड है, आपका फैन होगा, फ्रिज होगा, टीवी होगा, दे आर रनिंग विद द ऑन डिवाइस। आप बोलेंगे पंखा चल जा, चालू हो जाएगा। उन सब के डाटा, कितनी देर चला, कितना देर, ये सब डाटा इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर आते हैं। कि स्मार्ट होम्स आने वाले टाइम में आप घर की लाइट जलाना भूल के 100 किलोमीटर जाने के बाद याद आता, आप अपने मोबाइल के जरिए आपके घर की लाइट ऑफ कर सकते हैं, फैन ऑफ कर सकते हैं, फ्रिज ऑन कर सकते हैं। सो दीज इन यूज ऑफ इंटरनेट है ना, इन रनिंग हाउस, और अपनी जो चीजें हैं आसपास की उनको रन करने के लिए। गेमिंग इज अनदर एरिया टू मेक एनी लर्निंग इंटरेस्टिंग। द यूज ऑफ गेमिंग इज धीरे धीरे एजुकेशन में काफी हो रहा है। इसके अलावा और बहुत सारे एरियाज जिनमें गेमिंग आजकल काफी चल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थोड़ा रिपीट हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग ले, आई थिंक दिस वुड बी द सेकंड लास्ट। डिजिटल मार्केटिंग मैंने ऑलरेडी बताया, डाटा साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी, जेनेटिक काउंसलिंग, लाइफ केयर प्लानिंग, फिटनेस नर्सिंग। ब्लॉकचेन इज अनदर एरिया विच इज डेवलपिंग इन ट्रेनिंग, ऑटोमेशन, हाई स्पीड ट्रांसमिशन बात। जीआईएस एंड सर्विलेंस टेक्नोलॉजी, अब आजकल बहुत सारे हाईवेज बन रहे हैं बहुत सारे तेजी से। तो पहले सर्वे का काम होता था, बहुत टाइम लगता था उसमें, लेकिन आजकल ड्रोन्स के जरिए और सैटेलाइट सर्वे के जरिए बहुत जल्दी से जो है ना टाउन प्लानिंग या हाईवेज की प्लानिंग हो रही है। तो जीआईएस एंड सर्विलेंस टेक्नोलॉजी इज अनदर एरिया। आज कई बार सोचते हैं कि जैसे हम लोग ही कैसे टेक्नोलॉजी का यूज जो है, जैसे नक्सल वाली एक प्रॉब्लम थी इंडिया में, लेकिन घने जंगलों में पहले बहुत डिफिकल्ट था पुलिस को जाना, लेकिन सर्विलेंस टेक्नोलॉजी के जरिए वो लोग कहाँ पे लोग छुपे हुए हैं या हथियार छुपे हुए हैं, सर्विलेंस टेक्नोलॉजी के जरिए पता लगा लेते हैं, ड्रोन्स के जरिए पता लगाते हैं। इवन सेंचुरी वगैरह में कि टाइगर वगैरह कहाँ पे है, टाइगर कौन से एरिया में बैठा हुआ है। तो ये जीआईएस टेक्नोलॉजी इन सब का यूज करके हम लोग जो है कई जगह बहुत सारी एप्लीकेशंस करके इनमें भी कैरियर अपन बना सकते हैं। 3D टेक्नोलॉजी विच इज वेरी पॉपुलर टेक्नोलॉजी, किस तरह से 3D टेक्नोलॉजी के जरिए आर्टिफिशियल लिम्स वगैरह बन रहे हैं, और इनका यूज जो है कैसे हमारी लाइफ को बेटर बनाने के लिए यूज हो रहा है। So these are areas which are emerging as career option. There could be more areas which will include in succeeding sessions. Next. So this is all about from my side, Sushma. Thank you so much. Thank you for your patient hearing. Thanks, Manoj. Over to you, Surbhi. You are the host now. Okay, thank you so much.
So before we take up the questions that many of you might be having in your mind, I would just like to share that the next session is going to be on 26th of December, which is the coming Saturday, and it will be from 5 p.m. to 6:30 p.m. And as it was discussed today, so the next 5 sessions they will be on specific streams. That what all career options can you have in these, and what all exams and all can be there, as Manoj sir said. So the session 2, that is going to be specifically on engineering and technology, tech design, science and research. So all those who are interested in this area, and all those who are thinking of going in this area, this session is definitely the one you all should attend. So this message is already being circulated, but definitely you can register on these numbers. You can drop WhatsApp messages and book your calendars for 26th December, 5 to 6:30 p.m. Okay, so now we'll be moving to questions. Maybe I'll just unmute. Those who have questions, they can raise your hand and then we will unmute you. Yes. Please raise your hand. Okay. Anyone? Devansh? Ananya has a doubt. Okay. Yes, Ananya Vijay, you can go ahead. Yeah, am I audible? Yes. Yes. Okay, I would just like to know what are the career options if a student takes pure science, that is in PCM. Okay, should I answer it? Yeah, you can Yeah. answer it. Probably we are going to cover it in greater details in the next session, but yeah, you can go Yeah, ahead. briefly, if you have decided PCM combination, यानी means फिजिक्स केमिस्ट्री अगर मैथ्स अगर आप लेते हैं 11th 12th में, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ you go for either English and another fifth language which could be physical education, information practice or Hindi or whatever. So with these 5 options, ज्यादातर बच्चे जो अभी PCM combination वाले हैं, they prepare for JEE Main. JEE Main and JEE Advanced, which is gateway for IITs, NITs और जो इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं उनके लिए. तो अगर आप इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं IITs में या NITs वगैरह में, या ISERS है, IIST है, और भी बहुत सारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में भी अंडर ग्रेजुएशन का प्रोग्राम होता है, IITs में बीटेक प्रोग्राम होते हैं, NITs में बीटेक प्रोग्राम होते हैं. इसके अलावा और भी Sorry, स्टेट can I interrupt? See, not interested in engineering. Okay, so they you are go into pure science. So that's sciences. career options I'm asking. So प्योर साइंसेस में तो जो कोर्सेज अवेलेबल है नॉर्मली Yeah. बीएससी के जो कोर्सेज होते हैं आपके पास, तो जो ट्रेडिशनल कोर्सेज होते हैं यू कैन डू बीएससी इन फिजिक्स, Yeah. केमिस्ट्री और मैथ्स. क्योंकि पीसीएम कॉम्बिनेशन है तो आप तीनों में पीसीएम में आप बीएससी कर सकते हैं इस कॉम्बिनेशन के साथ में. यू कैन सम किसी कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में ऑनर्स भी अवेलेबल होता है, बीएससी ऑनर्स. सपोज फिजिक्स करते हैं तो अगर फिजिक्स ऑनर्स है तो फिजिक्स के पेपर्स बढ़ जाते हैं, और मैथ्स में या केमिस्ट्री में से आप एक सब्जेक्ट और ले सकते हैं बस, फिर आपको सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट मिलते हैं. तो नॉर्मल बीएससी पास कोर्स कर सकते हैं आप, जिसमें तीनों सब्जेक्ट होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स. अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में ऑनर्स वाला कोर्स करते हैं बीएससी फिजिक्स, तो आपको साथ में मैथ्स या केमिस्ट्री में से एक ले सकते हैं. अगर आप बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स करना चाहते हैं तो आप मैथ्स या फिजिक्स में से एक ले सकते हैं. देन उसके बाद यू कैन मूव टू पोस्ट ग्रेजुएशन एरिया. अगर आपको लगता है कि पीजी करना है, पीजी में आप जिस सब्जेक्ट में आपने बीएससी किया तीनों में पीसी, अगर आप पीसीएम लिया है तो आप एमएससी तीनों में से किसी सब्जेक्ट में कर सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ्स में. केमिस्ट्री में भी ऑर्गेनिक पार्ट अलग हो जाता है, इनऑर्गेनिक तो फिजिकल पार्ट अलग हो जाता है. ऐसे ही आप जो भी अपना इंटरेस्ट एरिया आपका बनता है उसके हिसाब से आप इसमें फिर फर्दर पीजी के बाद अगर आपको लगता है कि बीएससी के बाद आप बीएड कर सकते हैं, टीचिंग एरिया में जाना है तो आपको, एमएससी के बाद जो है आप रिसर्च में जाना है आपको, तो आप पीएचडी के लेवल पे आप पीएचडी फॉलो कर सकते हैं. आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है तो आप वैसे ग्रेजुएशन के पोस्ट बाद जो जेआरएफ होता है, नेट का एग्जाम होता है पीजी का, इनमें भी आप जो है इनके जरिए आप गवर्नमेंट जो है कॉलेज में या इंस्टीट्यूशन में जा सकते हैं.
प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए यू नीड एटलीस्ट MSc और PhD एट अ सीनियर लेवल। और इसके अलावा आप चाहे तो नॉर्मल BSc करके बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, उनमें भी जा सकते हैं। बट प्योर साइंसेस के लिए इसके अलावा आप 11th-12th में अगर आपको लगता है कि इंस्टीट्यूट्स लाइक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, उसमें अगर आपको जाना है सपोज, विच आर वेरी प्रेस्टिजियस कॉलेज, उसके लिए आपको JEE मेन देना पड़ेगा। JEE मेन के थ्रू होता है, KVPI एक एग्जाम के थ्रू भी लेते हैं, वो किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, उसके थ्रू भी लेते हैं, वो आपको देना पड़ेगा। उसमें अगर आप KVPI स्कॉलर हो जाते हैं तो ISR में आपको डायरेक्ट एडमिशन मिलता है। एक पॉपुलर रूट है JEE मेन का, उसके जरिए भी एडमिशन होता है। उसके अंदर उसकी जो भी ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक आप देख सकते हैं, अकॉर्डिंगली आपकी रैंक होनी चाहिए। इसके अलावा वो स्टेट टॉपर्स को भी वो है डायरेक्ट एडमिशन देते हैं। एंड इसके अलावा दे हैव देयर ओन टेस्ट, एंट्रेंस टेस्ट आल्सो, बाकी बच्चे स्टूडेंट के लिए। सो यू कैन ऑप्ट फॉर दैट टेस्ट आल्सो, अगर आपको ISR में जाना होता है तो। इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो प्योर साइंसेज में कोर्सेज अवेलेबल कराते हैं, उनकी फिर आपको डिटेल जानकारी जब आप Just to add on to what Manoj has said, I'm not sure if you were asking for careers in research, or you were asking how do you get into the research. So he has already explained how do you get into the research institutions. Like we have IITs, we have ISERs, which are on national Indian national level. Then we have NICERs also, and apart from NICERs, then third level will be different colleges in respective cities. Like we have in Pune, we have Ferguson College, and Delhi also, Delhi College. All those colleges are very, very good for pure sciences, and their cutoffs are also very high. You can choose a subject of your interest. Initially, it will be a plain BSc, and later, as Manoj said, it could be honors also. Now, coming to careers in research, obviously, if you, let's say you take mathematics for research, then you could either do PhD, postdoc, and all in India or abroad. You could choose Chennai Mathematical Institute, which is a very, very prestigious institute for mathematics as career. And then you get into the pure maths research. If you get into physics, chemistry, or any others, then for physics, typically when you are a researcher, you do postdoc and typically get into some of the institutes where you are doing a postdoctoral and continuous research, and also teaching. In case of engineering sciences also, there are researches happening which can also be related to science research only. Then you could do engineering, and then again get into different technology firms where you could join as a researcher. So the high end research happens there also. Example, you could also take a material science and do lot of research. This research happens in different companies, as well as into while you are into different universities. So university research program also happens while you are when you are teaching and also doing research as a scientist. Or it could be different organizations, government or private, where you could do research. For example, if you know, Pune has Defense Research Organization, DRDO, where they do research into different materials which are required for defense purposes. So RDX was also developed in Pune Defense Laboratory. So that kind of research. So these are some careers that you could choose. So in various organizations, industries, you have researches. You have researches done through government organizations, and you have researches done through different universities. So these are different areas where you could work. For example, if you pass out from CMI, Chennai Mathematical Institute, for mathematics, and then do further masters or postdoc doc, then you are also hired by different companies like Google and Facebook and all, where you do help them for different strategies for data analytics and modeling and all. So these are some areas that you could think of. Have we answered your question? Yes, definitely. Thanks a lot. Okay. Just one, aligned question is that, so for a student, like if they get into ISER, Yeah. then taking an coaching for JEE mains, does it become important? Should they still go for coaching for JEE mains if they're concentrated towards like pure science and want to get into ISER? For example, I'm saying so.
coaching in JEE mains, does it become important? Sure. So let me take this question, Manoj, and then I'll hand it over for additions on that. So see, how we recommend usually is that you should do both, and your primary focus should be KVPY, and then you can still study JEE mains. The reason being that all these three channels are very competitive, and if you just focus on KVPY, it is possible that you may or may not get through. If you get through, great. If you don't get through, you still have options for other things. So how we do is that we want to give you 1 2 3 as your priorities in terms of the examinations, okay? And then you can get into you can prepare one particular thing with a focus thing, and then you can meanwhile prepare for other examinations also, because of the competition that we have, right? And typically the coaching for mains may also assist you, because the difficulty level for KVPY and mains is almost same, KVPY being little bit more in terms of thought. So the difficulty level lies between JE advanced and JE mains. So that is why you need to prepare, and obviously the subjects are also same, where except that in class 11th, if you take KVPY, then you also have biology to be studied, which is up to class 10th level biology. So little bit of modifications are required in the study, but then you may need some kind of assistance or coaching. So we are also going to organize a program as to what kind of coaching is most appropriate for you when you have decided for a particular type of examination or career stream. Over to you, Manoj, if you want to add. I think you have already answered Thank it. you. ISER has different modes of admitting the students, but JEE-Man is the most popular mode, and which has more chances of getting into it. KVPY state toppers is very niche segments, because KVPY is very competitive. So you have to keep your preparation of both JEE Main and KVPY together, because KVPY थोड़ा जल्दी हो जाता है एग्जाम, उसका रिजल्ट आया तो then you also know कि KVPY में हुआ ही नहीं हुआ अपना. So if KVPY option is closed, then you can completely focus on JEE Main, which is a very popular area, because state toppers तो एक एक दो दो स्टूडेंट होते हैं, तो वो तो एक तरीके से एक काफी टफ चैनल है. But KVPY and JEE Main are more popular channels to get into ISERs. Okay, thank you Yeah. so much. Yeah. To all of you, I've also messaged. Please, you can post your questions in the Okay, chat. thank you. Thanks. Sure. So Ma'am, the next question, quickly we can go. Mariam has a question that if I want to be a part of NCL Pune, so what do I have to do? yes, ma'am. This is my question. Sure. So NCL Pune takes the intake after your graduation. So probably you could, that is, it says it is National Chemical Laboratories, but it has other courses as well. And you could try doing bachelor somewhere and then get into NCL either as a master's or PhD student. So that is how you could do that. Ma'am, so what is the procedure of CSIR? CSIR also has examinations which are conducted, and those who are KVPY scholars also get through in different CSIR projects later. Once they have the qualification, whatever qualification they have, let's say if they need masters or if they need doctorates. So once you have that and you are also a KVPY scholar, it is possible that you can directly get as a junior scientist or grade 2, grade 1 or something like that into CSIR. Okay, ma'am. So there are some next questions. Yeah. One is related to Sughosh is asking that uh,
for fashion designing field, what subjects to choose after 12th, and what all exams can be given. And then there is another question which is related to jobs in travel and tourism. So there are these two questions from two different people: fashion designing and travel Sure. travel and tourism. Yeah, so after graduation or during graduation, there are some universities or some organizations, institutions offer courses in travel and tourism related, but these are not grad related graduation courses. These are just top up courses, so you can look into that. And for fashion technology, there are programs even after the immediately after your 12th grade. So we will get into those. I think the session is planned on let me just check when is the session on design. We have some session on the session number 5, which is humanities management, civil and defense services, where we may try to cover something related to the design part. And if it is a more tech design and all, we are covering in session 2. Manoj, do you want to add something on travel and tourism and national fashion technology? I think you have answered it, but we'll cover more in the specific sessions. Okay. Yeah. There are courses which are sometimes some areas of fashion technology. There are various areas in fashion technology, like from fabric design to costume Jewelry. design to jewelry. So there are a lot of courses on design part. So NIFT, National Institute of Fashion Technology, they do take admissions students after 12th. And sometimes in some areas you need science combination, but there are many areas which are open for arts and other STEM students as well. But in detail, we'll cover in that specific session. Yeah. I think one last question, if there is any, we could take. Otherwise, yeah. Yeah, ma'am. I'll just brief, like 2-3 questions are there. So one is asking about Ayurveda Charya. One question is related to if you have taken biology, but if you don't score in NEET, then what are the options in biology? This is the second question. And the third question is, which stream is better in 11th, 12th for UPSC exam? Okay. Science or arts? Can I choose science first and then arts in 12th? That's the third, yeah. So about that BMS question, hello. Yeah, Ayurveda Charya. That is Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery. It's a typical course like MBBS, but this is Ayurvedic is like Indian जिसके कहते हैं ना इंडियन जो है पैथी है जो पढ़ने की. So इसमें भी वही PCB कॉम्बिनेशन के स्टूडेंट के साथ, और अभी इंडिया के सारे कॉलेजेस में है जो है आयुर्वेद के जो BMS के कोर्सेज है उनमें नीट के थ्रू एडमिशन हो रहा है. नीट इज पार्ट ऑफ आयुष. आयुष का जो पहला ए है स्टैंड्स फॉर आयुर्वेद. सो उसमें बहुत सारे नेशनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जयपुर है. इसके अलावा बहुत सारे स्टेट लेवल पे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो यही कोर्स ऑफर करते हैं. दिस इज अनदर वही 4.5 प्लस 5 साल का कोर्स है. और इसमें जो है बहुत पहले इसमें संस्कृत के थ्रू एडमिशन होते हैं, बट आजकल PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के जरिए इसमें बच्चों के एडमिशन होते हैं. एंड देन यू हैव PG कोर्सेज ऑल्सो. अभी तो गवर्नमेंट ने इनमें जो BMS वाले जो डॉक्टर्स हैं उनको भी अभी कुछ सारी सेलेक्टेड जो है ना सर्जरी करने के लिए अलाउ किया है. तो इसमें भी आगे MS और MD लेवल के कोर्सेज होते हैं. So this is emerging area where people are now coming back to Ayurvedic medicine. और अभी कोरोना टाइम में और बाबा रामदेव ने काफी इसको जो है पॉपुलर किया है. But to study it scientifically, we have courses like BMS, and you can get through these courses, getting these courses through NEET. So across the country, all the Ayurvedic colleges which are offering BMS as at undergrad level admit a student through NEET only. Number one. Number two was कि NEET में जिन लोगों ने अच्छा नहीं किया है उनके लिए क्या ऑप्शन है. So पहली बात तो कि NEET का जो अलग अलग NEET is eligibility cum entrance test. 50% बच्चों को वो क्वालिफाई कर देते हैं. अगर 15 लाख 16 लाख बच्चे बैठे तो लगभग 7-7.5 लाख बच्चे तो एलिजिबल डिक्लेयर कर देते हैं. दिस इज एलिजिबिलिटी की ऑन द बेसिस ऑफ NEET you can get admission in medical and allied courses.
तो अब जो टॉप लेवल के बच्चे होते हैं, ऑब्वियसली एम्स और जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जाते हैं, देन देयर आर लॉट ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस जिन एमबीए। इसके अलावा भी बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं प्राइवेट कॉलेज में, मैनेजमेंट कोटा, पेमेंट सीट्स वगैरह होती है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो उनमें भी जा सकते हैं। इसके अलावा बाहर भी है, अब्रॉड स्टडी करने के लिए भी जा सकते हैं, लेकिन नीट जरूरी है। अगर आपने थोड़ा सा ठीक नहीं किया है तो भी बहुत वेराइटी, अगर 7-8 लाख बच्चों में अगर आप आ नहीं सकते 15 लाख में, तो दैट मीन्स कि आपने उसमें बहुत ही खराब किया है। उसके बावजूद भी आपके सामने, जैसे मैंने 4 ऑप्शन बताया कि आप फार्मेसी कर सकते हैं, आप फिजियोथेरेपी कर सकते हैं, आप नर्सिंग के कोर्स, बीएससी नर्सिंग का एम्स में कोर्स होता है, इट्स अ वेरी कॉम्पिटिटिव कोर्स, यू कैन डू दैट आल्सो। इसके अलावा डायग्नोसिस के आजकल टेस्टिंग लैब जो है ना, एमएलटी बैचलर्स लैब है ना, लैब जो डायग्नोसिस में होते हैं, बहुत सारी लैब्स होती है डायग्नोसिस की, उनसे रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, वो आप कर सकते हैं अगर आपने नीट में अच्छा नहीं किया है तो। स्पेसिफिकली अगर आपको लगता है कि आप मेडिकल से जुड़े रहना चाहते हैं, और अगर आप नहीं है तो यू कैन चेंज योर स्ट्रीम, है ना, आप ग्रेजुएशन के लिए स्ट्रीम भी चेंज कर सकते हैं। या फिर आपको लगता है कि साइंस पीसीबी में रहना आपको, फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो आप प्योर साइंसेज में बीएससी कर सकते हैं, एंड देन यू कैन मेक योर करियर इनटू टीचिंग आफ्टर बीएड, और बायोलॉजी में भी आप आगे पीजी या पीएचडी लेवल कोर्सेज कर सकते हैं। आई होप आई हैव आंसर्ड। Yeah, thank you so much. We'll just like over to Divya for the last question. She'll better be able to ask the question herself. So Divya, last question, you can just unmute and ask. Yeah. यस मैम, मुझे यूपीएससी देनी है तो 11th-12th के लिए मैं साइंस चूज करके बाद में आर्ट्स ले सकती हूँ क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, आप अगर, मैंने बताया कि आप 11th-12th में अगर साइंस लेते हैं ना, तो आप 12th के बाद जो है इवन यू कैन स्विच टू एनी स्ट्रीम, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आप कॉमर्स भी ले सकते हैं, आप आर्ट्स भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने 11th-12th में आर्ट्स ले लिया या कॉमर्स ले लिया तो फिर आपको साइंस का वापस ग्रेजुएशन में पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। सो ये दोनों तरफ से नहीं है। अगर आपने 11th-12th में साइंस लिया है तो आप 12th के बाद ग्रेजुएशन में कॉमर्स या आर्ट्स में जा सकते हैं, बट अगर आपने 11th-12th में आर्ट्स या कॉमर्स ले लिया तो आप फिर ग्रेजुएशन में या किसी और कोर्स में जो है साइंस में नहीं जा सकते। ओके, इज दैट आंसर्ड? यस सर, थैंक यू। अच्छा, एक क्वेश्चन और रह गया था, किसी ने यूपीएससी के लिए पूछा था कि साइंस में या आर्ट्स में से कौन सा ज्यादा बेटर रहता है। तो उनके लिए आंसर हुआ कि जो सिविल सर्विसेज में है, नॉर्मली एक तो प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है जिसमें नॉर्मली जनरल नॉलेज या जनरल स्टडीज आता है, वो तो सबके लिए कॉमन रहता है। देन देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल एज अ ऑप्शनल। आप कुछ भी ऑप्शन ले सकते हैं, इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट ले सकते हैं, आप साइंस के ले सकते हैं, आर्ट्स के ले सकते हैं, सबके लिए ले सकते हैं आप। तो आपको जो भी आपका फील्ड का इंटरेस्ट हो, आप उसमें आगे पढ़े ग्रेजुएशन तक, और आप चेंज भी कर सकते हैं। उनका जरूरी नहीं कि आपने इंजीनियरिंग किया था आप इंजीनियरिंग के कोर्सेज लें, उसके अंदर आप आर्ट्स के भी ले सकते हैं। बहुत सारे जो स्टूडेंट है जो इंजीनियरिंग करके आर्ट्स के सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं, so that is specifically on your choice, but yeah that's true कि ज्यादातर स्टूडेंट सिविल सर्विस वगैरह में आते हैं, काफी बच्चे इंजीनियरिंग साइड से भी आते हैं, लेकिन ह्यूमैनिटीज से भी काफी आते हैं, आर्ट्स सब्जेक्ट लेके भी काफी स्टूडेंट जो है करते हैं। तो ज्यादातर जो रेशियो है बच्चों का सिविल सर्विस जाने का, इंजीनियरिंग और ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स का। सो यू कैन आउट फॉर जो भी आपका चॉइस है उसके हिसाब से कर सकते हैं। Okay, thank you so much, sir. I know definitely all of you have a lot of questions, but we'll try to answer all those questions in the sessions to come. So again, आप लोग screen पर देख सकते हैं that this आगे आने वाले sessions में specific topics पे है. So all those who are interested for engineering, science and research, that is 26th. Then medicine, health sciences, that is 27th. 2nd of January is for commerce, finance and law. 3rd is for humanities, management, civil defense and all. And the 9th of January is for studying abroad. So yeah, I know many questions are there, but we'll definitely answer them in the sessions to come. Yeah, and alternatively, what you could do is that I am sure that you are on our WhatsApp group for career counseling. So you can write your questions to one of the administrators one-on-one, and that those answers will be sent to you either in the group or direct as a direct message to you. And I will just say that thank you so much for
hearing us out, and please spread this message, because luckily this we can say we can focus on the lucky part of this corona and all, is that we have better outreach because of digital media that we have now started using actively. So we want to reach to the most deep villages also, where people or students don't have information. So we want to help them out also. These all sessions are free, and we have experts trying to help you out. So do spread the message and make most of it, because I see a lot of students who are confused even in 11th and 12th as to what they want to do. So this is the time to focus and think about your career. Now you have vacation also, like Christmas vacation for 5 to 7 days, in which you and your parents can sit and think through, discuss, and with our sessions I'm sure that you will have better understanding, and you can try to close that. Should you need any other assistance, do let us know. एंड हम लोग कोचिंग के क्लासेस के बारे में भी बताएंगे कि आपको किस टाइप से किस बच्चे के लिए कौन सा अप्रोप्रिएट रहता है. सो दैट विल ऑल्सो नॉट बी जस्ट दैट because we are doing coaching we will say this is the best for you, we are the best for you. That is not the purpose. The purpose is to help you out to choose right career institute, coaching institute for you. So yeah, we will meet on the next session. Till then, stay safe and stay happy, and study well. Students, I just want to say that study really well. And one last point, I will close this session with one last point. Arise, awake, and stop not till your goal is achieved. Yeah. So all students have to really work hard and make all of us proud, make their parents proud, make your teachers, make us really, really proud. Thank you so much for joining the session. Stay tuned for the next sessions. Thank you. Thank you. Okay, take care. Bye-bye.